president of the station, Professor Kameshwar Thasar, who happens to be a legendary figure, and the vice chairman of Rashtriya Pustak Shiksha Abhiyan. Then, distinguished guest and keynote speaker, the Honorable Vice Chancellor of the University, and none of the Open University, Professor Ras Bihari Prasad Singh, sir. Guest of honor, Dean of Social Sciences, Professor Gopinath Prasad Singh, sir. Sir. Kindly come to the dais. Guest of honor and the registrar of the university, Professor Mushtaq Ahmed Sahab, is requested to come to the dais. And the most popular head of the department, Professor Jitendra sir, the respected president of the organizing committee, is kindly requested to come to the dais. Sir, I was there in the meeting, and yes, Honorable Vice Chancellor of this university, we used to have the conferences and seminars in all the disciplines, in all the subjects. And you would be happy to note the fact that the guest of guests, the teacher of teachers, the teacher of several generations, Professor Prabhakar Pathak is here with us. Dean of Students' Welfare is there to grace the occasion. The former Dean of Social Sciences, Professor Ramkumar Thasar, has arrived, and so is the case with my colleagues, dear students, media, friends. I welcome you all on behalf of the University Department of Political Science. See, education, the elementary education, is meant for universalization. The secondary education has been meant for vocationalization, and higher education is meant for excellence. And I think that we have to make tireless efforts in that direction. Yes, resources are not there. Even then, we are trying our level the best. Now, the guests have arrived, and the president of the station is Professor Kameshwar Thasar, and Honorable Vice Chancellor sir is there. I would like to request the volunteers to assist in felicitating the president of the station by the Honorable Vice Chancellor of the university. आगे जाकर क्या फायदा होता है यहाँ से भी सकते हैं Students are हमारा ये पैक हो जाता है coming there to assist. Please come slowly this way. भैया मदद करना बचा करके कहाँ से होगा नहीं हो पाएगा. Mithila is great. Yes, the park is there.
The memento of the occasion. Memento. The flower bouquet. Come with the bouquet. Now, once again, again the organizing committee would like to trouble the Honorable Vice Chancellor of this university to welcome the distinguished guest and the keynote speaker, Professor Lars Gerhardsen. Sir. Now, again, media persons are requested. तो क्या फायदा होगा? Yeah. The chief guest of this station is no other than the Honorable Vice Chancellor of this university. And so, the head of the department is requested to felicitate the Honorable Chief Guest of this station. Hello. Now, the Dean of Social Sciences, Professor Gopi Raman Prasad Singh sir, is there. He has been kind enough to grace the occasion, and Professor Mithila has to felicitate. This is my duty. I am there to welcome the Dean of Social. देखिए केवल कैमरा के सामने से पहले मदद की आपका भी इम्पोर्टेंस है लेकिन लाइव जा रहा है साइड क्लियर है थोड़ा साइड है थोड़ा हां ठीक है उतना स्पेस बना दिया सब लोग टेक्निकल आदमी है कोई विद्यार्थी कहाँ है खाली Now, one of the most popular registrars of this university, Professor Mustaq Ahmed Sahab, is there, and Dr. Nisham Rai, another faculty member, is requested to welcome with Chadar, the father of Mithila. Memento, bouquet, and the rose. Priya and other volunteers are requested to come to the dais and
honorable guests are requested to light the lamp and formally inaugurate the station. And other students are requested to assist with candle, matches. थोड़ा सा जो है लाइव थोड़ा सा एक और बच्ची बोले चलो जाइए सर थैंक यू Yes, sir. Going to pay the floral tributes to the father of the nation, Mahatma Gandhi, the great soul, the man of intuition and action, the great Mahatma, who has made the epoch-making event and got the global recognition. There is no match. His matchless Karl Marx could never match him. So great Mahatma, we are really, really proud of the great soul of India. Thank you very much. With the kind permission of the chair, Professor Jitin Narayan Shah is requested to for the welcome address and sir, thank you, sir. So kind of you. Yes, the university music department and my dear students, research scholar, the former dean and the head of the department, Madam is there, Dr. Professor Pushpa Narayan, Madam is there. So everybody is requested to stand up and that's it. And kindly maintain the silence.
प्रौद्योगिकी के साथ प्रबंधन, प्रौद्योगिकी के साथ प्रबंधन, रंजन उपजन क्रिया, विविध सत्र विषयादि सुशिक्षा, विविध सत्र विषयादि सुशिक्षा, व्यक्ति जनित हर क्रिया, मिथिला त्रिभूमि भूमंडल विश्रुत नवउत गाथा, ऊर्ध्वगाम घोषित सर्वोपरि अभिमनुज विधाता, पितामुदित महामणि हर हर भारत परित्राता, ललित विश्वविद्यालय ज्ञान प्रदाता, तत्प्रबल सम सुस्थिति लय गणाध विकासित छाया, मान मकान लोक सुत गर्वित, कीर्तित गंधित काया, पितामुदित महामणि हर हर भारत परित्राता। Thank you, dear students. We are here to express our gratitude to the writer of this movie. Professor Pathak is here with us, and we are really proud of this creation. And yes, we are highly obliged and express my gratitude to Gurudev himself. Thank you, sir. Welcome address by the President of Organized Committee, one of the most popular head of the department, Professor Narayan sir. Please. Yes, sir, at a very short notice, we have been able to get the song printed. So the respected guests and volunteers are requested to assist them for the public release of the song that is there. And media persons are requested to take the snaps. Please. मनोज भैया ओके अब ठीक है सर थोड़ा सा और नजदीक हो जाएगा, नजदीक हो जाएगी। आ रहा है पूरा। हाँ सर, हाँ भैया ओ भैया देखते हैं रोल तो आना चाहिए। हाँ था लोग Thank you. Let me tell you frankly that this has been the online because international conference cannot be offline because we don't have the resources. But this, they are connected. गोष्ठी स्थल पर उपस्थित हमारे गुरुजनों, मंच पर उपस्थित गुरुजनों, विशिष्ट जनों,
मित्रों, छात्रों, छात्राओं, मैं यहीं का विद्यार्थी रहा और ये दायित्व हमारे गुरु बैठे हुए हैं, डॉक्टर सुभाकर पाटिल और डॉक्टर कामेश्वर जी। राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा और सर के मार्गदर्शन में जहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, केवल उन लोगों का आशीर्वाद है, मेरे जैसे बेढंगे लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाया है उन लोगों ने। और हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहने के बावजूद हिंदी साहित्य के बच्चों से ज्यादा अगर प्यार मुझको मिला है तो ये डॉक्टर प्रभाकर पाटिल से भी संभव है। और उसी के बिना पर ये अंतर्राष्ट्रीय सब जो कॉन्फ्रेंस है वो करने की हिम्मत हम लोगों ने जुटाई। लेकिन कुछ भी संभव नहीं हो पाता अगर माननीय कुलपति महोदय हर स्टेज पर उन्होंने मार्गदर्शन किया। जब भी कोई आवश्यकता पड़ी वो उन्होंने हम लोगों के सामने सहज ढंग से उपलब्ध। मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से अंत करूं, दो दायित्व है मिश्र जी। एक दायित्व की चर्चा नहीं हुई, इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट और वेलकम दोनों। वो कार्यक्रम में क्योंकि माननीय कुलपति महोदय ने जो अवसर दिया 10 तारीख के बाद से हम काम कर पाए, क्योंकि विभाग में हमारे शिक्षक ये मात्र 15 दिनों का हमारे बच्चों का, हमारे विभाग के लोगों का है। इस अवसर पर हमारे गुरु हैं प्रोफेसर कामेश्वर जी, सभा के सम्मानित सभा के अध्यक्ष हैं, इसीलिए मैं उन्हीं से शुरू करता हूँ। आपकी व्यवस्था सबको मालूम है, परिस्थितियां मालूम है, उसके बावजूद आपसे हौसला अफजाई के लिए आप ही का विभाग है, शुरू से अंत तक आप ही का रहेगा। अध्यक्ष के रूप में हमको अपने विभाग की तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से स्वागत करते हुए क्या हो रहा है सर मैं नहीं कर सकता, केवल इतना कह सकता हूँ कि राजनीति विज्ञान विभाग के लिए गौरव का क्षण खड़ा था यहाँ अध्यक्ष के रूप में इस कार्यक्रम और उसमें मैं बड़ा भाग्यशाली रहा। 7:30 बजे कार्यक्रम शुरू होने से 1.5 दिन पहले मैंने 7:30 पौने 8 के आसपास परम सम्मानित एक शिक्षक के रूप में, कुलपति के रूप में प्रोफेसर राजबिहारी सिंह नाम की मैंने फोन किया। सर किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में थे, इतना बड़प्पन है शेड्यूल हमको करना पड़ा, क्योंकि जो आने वाले थे कुलपति के दायित्व की वजह से ऐसी परेशानी हुई थी, वो चाह करके भी नहीं आ सकते। उस समय में कुछ सूझ नहीं है, तो मैंने सर को फोन किया। सर का बड़प्पन इतने विशाल हृदय शिक्षक के रूप में है, यदि मैं आपको जिंदा करता हूँ। और सर ने सहजता से अस्वस्थ बीच में थे और सुबह सुबह आए हैं। एक डिस्टिंग्विश्ड लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं, स्पीकर हैं, कीनोट एड्रेस हैं। सर के साथ हमको माननीय कुलपति महोदय के एक संगोष्ठियों में साथ में अनेक दायित्व के तहत काम करने का मौका मिला है। मैं जानता हूँ कि ज्योग्राफी मैंने सर एक केस के लिए, विभाग के पेज के लिए काम किया था। सर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर हुआ था ज्योग्राफिकल जैसे जब सेल्फ रिलायंट भारत, प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम को लेकर के चल रहे थे उसमें अनेक कार्यक्रम में गुरुवर प्रभाकर पाटिल सर का भी हिंदी साहित्य का योगदान उसमें हुआ है। तो हम सर आपको इस रूप में पाकर इतने कम समय में आपने कृपा की है। सच बताते हैं सर कि कोई भी शब्द उपयुक्त नहीं हो सकता है जिस तरह से आपने हमारी मदद भी की है, आशीर्वाद भी किया है। इस कार्यक्रम को जो गौरव आपने प्रदान किया है सर, हम नतमस्तक हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं सर, शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी सोशल साइंस के भी हमारे बड़े भाई हैं प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह। डीन के नाते सोशल साइंस का आपका ये विभाग है, आप आए, समय से आए, बीच बीच में मैं आपको तंग भी करते रहा, उसको भी आप खेलते रहे। मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मुश्ताक जी के साथ मेरा बड़े छोटे भाई का संबंध रहा है। ये जो कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं, विभाग को कुछ मजबूरियां थी, इसका निवारण आपने जिस ढंग से किया, हम हमेशा उसके लिए आभारी रहेंगे। सभागार में प्रोफेसर अनिल कुमार झा हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष भी हैं, डीन भी रहे हुए हैं। आपका भी मैं पूरे सम्मान के साथ, आदर भाव के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे मित्र हैं जो एक ही बैच के हैं, बच्चन जी, उनका भी मैं उसी भाव से, आदर भाव से मैं स्वागत करता हूँ। ये मेरे लिए गौरव की बात है। और प्रोफेसर पुष्पम नारायण जी हैं,
इनके साथ मेरे अच्छे रिश्ते रहे हैं, इनके प्रति से भी मेरे अच्छे रिश्ते हैं। लोग मैंने कहा कि कार्यक्रम आयोजित है तो सारी व्यवस्था अपनी ही व्यवस्था से आना, अपनी व्यवस्था से जाना और बच्चों को समय से पहले लेकर के आना, ये जो संबंध हमारा है विश्वविद्यालय का जो संबंध होना चाहिए उसकी प्रतिमूर्ति के रूप में यहाँ बैठी हुई है। इनके लिए आभार के लिए मेरे पास कोई शब्द, वेलकम के लिए कोई शब्द नहीं। और सभागार में श्रुतिधारी सिंह जी हमारे मित्र हैं, वो एक बैठते हैं आखिर कॉलेज से मैंने कहा कि आना है। भाई अशोक जी के साथ रिश्ते जो हमारे हैं मालूम है, कभी बड़े दायित्व में है और डीन है, Dept.of है। अगले सत्र में सर भी और प्रभाकर सर का भी जो हमारा समापन है उसमें उसकी भी शोभा बढ़ाए में आप लोग आए। कंट्रोलर साहब को मैंने फोन किया कि कार्यक्रम के निमित्त मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप भी आए हैं। और कौशल जी को भी डिप्टी डायरेक्टर डिप्टी रजिस्ट्रार के दायित्व में है और आप जानते हैं कि उसके बिना विश्वविद्यालय में संचिकाओं का क्या हो सकता है और जो भी काम हम लोग कर पा रहे हैं उसमें सतत सहयोग किए हैं। भाई जय कुमार जी विभाग के हमारे मुनेश्वर जी की सब कुछ है, मैं नाम का हूँ अध्यक्ष, सारा उनका है, घनश्याम जी का है और मुकुल जी उनका है। और बच्चों के बारे में उनका भी स्वागत करता हूँ, उन्हों के बिना तो ये संभव ही नहीं। 3-3 बजे रात तक सिद्धार्थ में बैठकर काम किया है, गणेश जी ने काम किया है और राजेश ने काम किया है। जो कुछ भी है सबका इस अवसर पर मैं स्वागत करता हूँ। जिनका नाम दीपक है, चंदन है, जितने लोग हैं, प्रदीप जी हैं, संदीप जी हैं, जितने लोग हैं, मेरे पास केवल आभार के शब्द है वेलकम के लिए। और चंदन जी चीजों को किस फलक पर ले जाते हैं उसके लिए आपका वेलकम भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। नाम अगर छूट गया, हमें इतिहास इसीलिए नहीं पढ़ा कि नाम उसको स्मरण रहता नहीं। तो लोगों से मैं क्षमा भी चाहता हूँ। इस अवसर पर हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, हृदय से करते हैं। आपके भव्यता मिली है और संख्या कुछ कम है, इसकी वजह है कि सारे विभागों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। वहाँ सारे विभाग के टीचर्स हम भी नहीं जा पाए और जिस विभाग में हम नहीं जा पाए, नहीं गए हैं किसी लोगों से, इस अवसर पर मैं क्षमा भी चाहता हूँ। जहाँ तक विषय का सवाल है, उसके प्रवेश करने का सवाल है, औपचारिकता है। ये सभा स्थल में अध्यक्षता डॉक्टर कामेश्वर झा जी मेरे गुरुवर कर रहे हैं, जहाँ प्रोफेसर राज बिहारी सिंह जी बैठे हुए हैं जो अपने निष्णात और माननीय कुलपति इकोनॉमिक्स के होते हुए भी कल मैं कुछ देर के लिए मिलने गया था तो राजनीति विज्ञान के ऐसे निष्णातों की बात उन्होंने की। और सामने प्रभाकर पाठक सर जो हिंदी साहित्य के भी हैं, राजनीति शास्त्र के भी हैं और जैसा कि कहा ठीक कहा मुनेश्वर जी, टीचर्स उनके सामने ये कुछ कहना, उस विषय में प्रवेश करना मेरे बस की बात नहीं है। केवल इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये दायित्व दिया है, नहीं तो मुनेश्वर जी नाराज हो जाएंगे कि आपने कुछ कहा नहीं। मैं केवल इतना कह सकता हूँ माननीय कुलपति महोदय की ये विषय जो हम लोगों ने रखा उसका जो भाव है, उसमें जो पेपर्स का डिजाइन हम लोगों ने किया, उसमें एक ही दिमाग में बात, तरक्की हमने बहुत कर ली। तरक्की का पैमाना ये है कि हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरी देश दुनिया में लोग देख रहे हैं। तरक्की का पैमाना हमारा ये डिजिटल वर्ल्ड हो गया, चीजें कितनी सॉफ्टिकेटेड हो गई हैं वो हम लोगों के सामने, उसके बारे में कुछ कहना है। एक जो ये दौर है ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का जो दौर है वो चल रहा है, साइंटिफिक डेवलपमेंट का दौर चल रहा है, ऊंची महलें बन रही, लेकिन जो मूल प्रश्न है मानव का। और गांधी के अभी कहते कहते मुनेश्वर जी मैं सुन रहा था, काम नहीं कर रहा था, मेरे ध्यान में ये चीज है, मार्क्स की बात उन्होंने सुनी। दुनिया में कुछ ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने मानवता की बात की है, मानव को केंद्र बना करके और बिना आगे पीछे कुछ सोचे हुए। और वो दर्शन में गांधी के बारे में कहता हूँ, एक बार मैं कह रहा था कि गांधी को हम क्यों समझे, गांधी की चर्चा हम क्यों करें, तो कहते हैं सत्य की बात है। तो सत्य में तो हरिश्चंद्र का पैमाना नहीं हो सकता है, दूसरा कोई आज तक नहीं। मणिकांत जी को मैं अभी देख रहा हूँ, मणिकांत जी हमारे ऐसे मित्र हैं, पत्रकार हैं, मैं इनसे बात नहीं किया, केवल मैसेज किया और उपस्थित आपका भी स्वागत करते हैं। तो गांधी की बात क्यों करें माननीय कुलपति महोदय, जब सत्य की बात अगर होगी, गांधी की चर्चा अगर सत्य की वजह से होगी तो फिर हम चर्चा करें, हरिश्चंद्र की चर्चा करें। त्याग की बात होगी तो दधीचि की चर्चा करेंगे और अपग्रह की बात होगी तो बुद्धि की चर्चा करेंगे। गांधी की चर्चा दुनिया क्यों करती है? तो अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि साथ हमको अगर हमारी एक ख्वाहिश पूरी होती तो उनके साथ में डिनर करना चाहता, बराक ओबामा की बात करना। तो कहते हैं कौन इतना बड़ा साइंटिस्ट है जिसको बार बार कोट करते हैं, मैं कोट नहीं करना चाहता हूँ, इतना बार कोट किया जा चुका है आइंस्टाइन का, केवल मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति होगा कोई मानेगा। क्या बात है कि नेल्सन मंडेला इस धरती को चूमता है तो कहता है गांधी की धरती, कुछ तो बात होती है।
बात मैं जो समझ पाया, गांधी पर थोड़ा बहुत मैंने काम किया, गांधी मार्ग में थोड़ा बहुत लिखा, जो मेरी समझ बनती है, मैं केवल इतना मानता हूँ कि गांधी ने इन तमाम चीजों का प्रयोग एक साथ किया। सब लोगों ने अपने कारणों से प्रयोग किया था, गांधी ने इन तमाम चीजों का प्रयोग समाज के लिए किया। और समाज में भी कोई हिंदू समाज नहीं, कोई भारत समाज नहीं, मानव जो समाज है उसके लिए उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने खुद लिखा भी, बाय एक्सपेरिमेंट विद दिस ट्रुथ। तो आज भी रेलिवेंस है कि लोग कहते हैं कि गांधी मजबूरी का नाम है। गांधी मजबूरी का नाम नहीं, गांधी वो दर्शन है, गांधी का वो अपना कुछ नहीं है, बहुत ईमानदार लोग। सनातन जो हमारी संस्कृति, एक आलेख मैंने लिखा था अमेरिकन एक जर्नल के लिए, भारतीय सनातन संस्कृति के बाहर गांधी। गांधी दूसरे देश में पैदा नहीं हो सकता। जैसे हम दरभंगा में अंगूर उपजा ले रहे हैं, लेकिन वो मीठा नहीं होगा, वो तासीर नहीं आएगा। मुश्ताक साहब उस तासीर को बेहतर समझते हैं, वो नहीं आएगा, क्योंकि मिट्टी की जो रवायत है, मिट्टी का जो संस्कार है। तो भारत में गांधी के पहले कितने लोग हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, प्रभंस हुए, यहाँ जो पुराण रहा, जो तमाम चीजें रही, जिन लोगों ने प्रयोग किए, उसको सींचा। पहले दार्शनिक होता है, उसके बाद वो धरती तैयार होती है, उसके अनुकूल बनती है। हिटलर युद्ध ही पैदा है। अगर हिटलर नहीं हुआ होता जर्मनी में, तो हिटलर नहीं होता, कोई कारण नहीं था। मैकियावेली नहीं होता तो मुसोलिनी नहीं होता। और गांधी इसलिए हुए कि उस परंपरा के तमाम सनातन संस्कृति के शाश्वत मूल्य के, वो अशाश्वत भी है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज दुनिया को शाश्वत मूल्यों की आवश्यकता है। अनेक कालखंडों में अनेक ढंग से लोगों ने कहा, गांधी वही कहते थे जो कि हिंदुस्तान का दार्शनिक कहता है, मूल हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि हम लोग सब लोग उसी के गर्भ से निकले हैं, जो हमारा वेदांत कहता है। इसलिए हम सबका रिश्ता है। और हमारा जब रिश्ता है, कोई भाई अगर चपरासी हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया, तो गांव के लोग कहते हैं कि साहब तुम उसको देखो, दूसरे के लिए नहीं कहते, क्योंकि सहोदर है। स्वामी विवेकानंद उसी भाव से कहते थे पाश्चात्य को, दुनिया वालों को बड़ी तरक्की करनी थी, तुम्हारा भाई आर्थिक रूप से अगर पिछड़ा है तो उसकी मदद करो। लेकिन पिछड़े भाई के पास देने के लिए बहुत कुछ है, और हिंदुस्तान के पास बहुत कुछ है। और हिंदुस्तान आज देख रहा है, कोरोना में लोग देख रहे हैं, वही गांधी की बात है। लोग कहते हैं कि अपने देश का नहीं किया दूसरे को दिया, यही भारतीय परंपरा है। बस उसको गांधी चरितार्थ करते हैं अपने दर्शन के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा है, गांधी ने उसको प्रयोग करके दिखाया। सुभाष जी उसी के लिए नतमस्तक थे कि आंदोलन को आम जनों तक ले जाए। बड़ा विद्वान हुआ सर आज के सदी में, जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं जब हम लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, तो रूसो की चर्चा करते हैं। रूसो आवारा, माननीय कुलपति महोदय, आवारा मसीहा के रूप में जाना जाता है। उससे दरिद्रता किसी ने ज्यादा झेली। और वो जब बात करता है तो वो कहता है बैक टू द नेचर। ये सारी विपत्ति की जो जड़ है, अभी आप देख रहे हैं, कोरोना ने बताया है, ये सारी विपत्ति की जड़ है हम लोग जरूरत से ज्यादा, हमारे यहाँ कहा गया, अति सर्वत्र, अति से ज्यादा। तो कैसे रहे, प्रकृति के नजदीक कैसे रहे, इस भाव से रहे, हमारी सनातन संस्कृति बताती है। और गांधी ने एक कालखंड में, जो कालखंड संघर्ष का कालखंड था, दुनिया को भी मार्ग दिखाया। अनेक आयाम है, हम उसको अलग अलग से ढंग से रखते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के तहत देखते हैं। आप देख रहे हैं कि टेररिज्म जो देखते हैं, तमाम चीजों के बारे में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को इस कालखंड में गांधी ने विजन से रेखांकित किया। और मुनेश्वर जी, समय हो गया है मेरा, लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने निवेदन किया था कि समय से ज्यादा नहीं रहेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने खुला सब्जेक्ट रखा कि जिसमें कि सब हमारे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें। रेलेवेंस ऑफ गैंडिज्म इन कंटेम्पररी एरा। और ये विषय मैंने जैसा कहा कि इस पर बोलने का सामर्थ्य मेरा नहीं, और खास करके तब जबकि डॉक्टर कामेश्वर का, डॉक्टर प्रभाकर पाठक बैठे हो, राष्ट्रीय सर बैठे हो, माननीय कुलपति इकोनॉमिक्स के होते हुए भी जो विद्वान होते हैं उनकी सारी विधाओं में कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहा गया कि हम लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से सब्जेक्ट बांट लिए, लेकिन ज्ञान संपूर्ण और समग्र होता है। ऐसे कुलपति बैठे हुए, मुश्ताक जी जो प्रिंसिपल भी होने जा रहे थे, मैं कहता था कि मत पढ़ने लिखने वाले लोग, और उन्होंने वादा किया था कि सर हम उसको करेंगे। हमको बेहद खुशी है ऐसे रजिस्ट्रार को वेलकम अपने कार्यक्रम में। पहला ही मेरे विभाग के रूप में, मैं विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यक्रम कर रहा हूँ कि दायित्व में रहने के बावजूद उन्होंने उस प्रक्रिया की, उस तासीर को मरने नहीं दिया है। इस अवसर पर इतना मैं आपके साथ निवेदन करता हूँ। ये गौरव विभाग को मिला है, ये गौरव विश्वविद्यालय को मिला है। विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के नाते माननीय कुलपति तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सभागार में उपस्थित अपने बच्चों के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं, इन लोगों ने भी किया है जो कुछ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। The scholar of political science, and Rousseau
आवारा मसीहा, वो मुझे लगा कि कहीं उधर ही न चला जाए, इसीलिए मैं खड़ा हो गया था। तो सर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब विषय प्रवेश के लिए, वैसे तो प्रवेश हो ही चुका है लगभग। सर सम्मानित हमारे आज के डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, कीनोट स्पीकर, एमिनेंट स्कॉलर, और बिहार में अगर कुछ चेहरे हैं उसमें प्रमादरणीय दास बिहारी बाबू हमारे बीच हैं। हम उनको आमंत्रित करना चाहते हैं मंच तक। प्लीज सर, तो काइंड, थैंक यू। अच्छा, धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के अध्यक्ष, अन्य फैकल्टी मेंबर्स, नाम से भले लोगों से परिचित ना हो, मैं परिचित हूँ, याद नहीं है, लेकिन अनेक सेवानिवृत्त शिक्षक मौजूद हैं, आज फैकल्टी मेंबर्स, शिक्षक, शोध छात्र, विद्यार्थीगण, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, मीडिया सहायक बंधुओं, सज्जनों। अभी जितेंद्र जी ने ठीक ही कहा, मुझे संभवतः परसों शाम को इन्होंने कहा, तो इनसे मेरा काफी पुराना लगाव है। हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कई जगह काम किया है, तो मैं यदि समय हो तो ना जल्दी नहीं करता हूँ, विद्यार्थियों से मिलना, उनसे बातें करना, ये एक अच्छी अनुभूति देता है और सबों को विमर्श में, विचार में आगे आना चाहिए। और वैसे तो गांधी ने कहा है, मित्रों, गांधी की इच्छा हुई कि शांति निकेतन का भ्रमण करें, तो प्यारेलाल जी से कहा, दोनों गए देखने। पूरे एक दिन गांधी ने वहां बताया। इसके बाद विद्यार्थियों और शिक्षकों ने कहा कि आप कुछ प्रवचन दे, बताएं। तो गांधी 92 में लिखा है कि गांधी ने कहा कि मौन भी अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा अस्त्र है। मौन, ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति के हाव भाव से, चेहरे से, या आज उसी को बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, उससे समझ सकते हैं, इसको देखकर, इसको समझकर ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि विमर्श ही एकमात्र विकल्प है। गांधी दर्शन में अगर आप अभिव्यक्ति नहीं करते हैं, कार्य करके दिखाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा विकल्प है समाज को कुछ बताने का, समाज को जगाने का, समाज में परिवर्तन लाने का। ये गांधी के बहुत सारे कार्य पुरुष थे। गांधी स्वयं एक दर्शन है, सभी जानते हैं। और मैं कहूंगा, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, रिलेवेंस ऑफ गांधीज्म कंटेम्परेरी एक्शन की आज जो चुनौती है, क्या गांधी सही में इसमें रिलेवेंट है, नहीं है, और क्या गांधी सिर्फ गांधी सदन, गांधी भवन, गांधी स्टेडियम, गांधी सैलून यहीं तक है, या इससे आगे भी गांधी है। मित्रों, बहुत सारे हो सकता है इतिहास के प्राप्त सारे विद्यार्थी हो, आप जानते होंगे, टॉयनबी इतिहासकार ने, उन्होंने लिखा है टॉयनबी ने कि ज्ञात इतिहास मतलब एक हिस्टोरिसिटी, एविडेंस ऑफ राम और कृष्ण की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ज्ञात इतिहास, क्योंकि अयोध्या की खुदाई में भी जो सबसे पुराने कार्बन डेटिंग से जो मिले चट्टानी टुकड़े या ईंट पत्थर, वो भी 1100 कुछ ईस्वी तक जाते हैं। मैं उस पर नहीं आ रहा, वो अपने जगह है, देवताओं का सम्मान है हमारे समाज में। मैं ऐतिहासिक प्रमाण ने कहा, बिना उसके गए ऐतिहासिक प्रमाण से हमने लिखा है कि पृथ्वी पर सही अर्थों में 5 ऐसे मानव हुए जिसका कोई विकल्प नहीं।
या जिसका कोई मैथ नहीं, 5, और उसमें निसंदेह उन्होंने पहला ईसा मसीह का नाम, जैसा क्राइस्ट ईसा मसीह। दूसरा नाम उन्होंने भगवान बुद्ध का, तीसरा मोहम्मद साहब प्रॉफिट साहब का नाम है। क्योंकि देखिए इनके हिस्टोरिकल एविडेंसेस बिल्कुल सजग है। चौथा नाम अब आश्चर्य मिलेंगे, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने जिस क्रूरता से एक विशाल साम्राज्य बनाया, इसके बाद जिस सौहृदयता से क्रूर सम्राट अशोक से प्रियदर्शी सम्राट रूप बन गया और बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित हो गया, और उन्होंने जो काम किया, उन्होंने कि चौथा में सम्राट अशोक का कोई मैच नहीं है, कोई एम्पायर नहीं है दुनिया में, लेकिन उन्होंने इन चारों की खामियों को भी गिराया है। हाँ, ये महामानव तो है। भगवान बुद्ध के विषय में कहते हैं कि बुद्ध का जन्म एक राजघराने में हुआ था। राजा के दायित्व की पूर्ति ना करके चुपके से घर छोड़ देना, यह अपने लोगों के प्रति न्याय नहीं था। और प्रॉफिट साहब के विषय में आदि भी का मैं समय नहीं लूंगा उस पर, लेकिन उन्होंने कहा एक व्यक्ति है पांचवा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ना कोई साम्राज्य बसाया, ना कोई ऐसा काम किया जिसने आम लोगों को कहा यहां दान दो, ये करो, वो करो। ये व्यक्ति सिर्फ चलते चला, काम करते चला, और इनका काम ही दुनिया का आदर्श बना। और ऐसा करने वाला, ऐसा करने वाला मैंने मानव अभी तक नहीं देखा। हमारे धर्म में राम कृष्ण हैं, लेकिन मानव कितनी हमारी पुरानी इतिहास है, एंथ्रोपोलॉजी के इतिहास का जानते। मुश्किल से कहते मीनिंगफुल स्पीच हम लोगों ने 40,000 वर्ष पहले विकसित किया, 35 से 40,000 पर। तो हमारे ज्ञात इतिहास में गांधी सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ना इन्होंने कोई मठ बनाया, ना इन्होंने कोई ऐसा कहा ये करो, ये सिर्फ करते गए, उसको लोगों ने फॉलो किया। मित्रों, ये विरल प्रतिभा के व्यक्ति आप गांधी, मोहनचंद करमचंद गांधी को उनके काम ने ही गांधी बनाया, महात्मा बनाया, राष्ट्रपिता बनाया। और आप समझ लें, गांधी को महान गांधी बनाने में अगर किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है तो वो राजकुमार शुक्ला है। अगर वो लखनऊ कांग्रेस में गांधी के पीछे नहीं पड़ जाते, गांधी आ चुके थे भारत में, अफ्रीका में उन्होंने कुछ खुराफात किया, अंग्रेजी रिकॉर्ड में खुराफात ही कहा गया है, उन्होंने किया था, लेकिन भारतीय कांग्रेस में गांधी भी उतने स्थापित नहीं हो पाए। लेकिन राजकुमार शुक्ला जी ने 16 के लखनऊ कांग्रेस में पहचान लिया, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो गरीबों के लिए, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर सकता है। गांधी ने जो पहले हाथ पे भाग लिया, शुक्ला जी पंडित नंदन मोहन मालवीय से भी मिले, वो लंबी कहानी में नहीं जाऊंगा, मैं इतना बता दूं कि शुक्ला जी उनके क्षेत्र पर गए, उनको यहाँ आना पड़ा, और जब आए तो भारत में गांधी का, मोहनचंद गांधी का, महात्मा गांधी का अवतरण हुआ। यहीं से गांधी की शुरुआत होती है 1917 ईस्वी से। मित्रों, ये कोई साधारण बात नहीं है। 17 में ही, 14 में तो वहां से आते अफ्रीका से, 17 में ही गांधी चंपारण में मजिस्ट्रेट के सामने कहता है, आपने कानून तोड़ा है। हाँ, मैंने कानून तोड़ा है, आपको सजा होगी, आपको मालूम है सजा होगी, मैं इसीलिए यहाँ हाजिर, आप सजा दे देंगे। फिर कानून नहीं तोड़ेंगे,
नहीं फिर तो ये कानून गलत है, अन्याय हो रहा है इसमें। वो गांधी जिसको अभी गांधी की मान्यता भी नहीं मिली थी, मोहनचंद करमचंद गांधी 17 में कहता है मजिस्ट्रेट को, अब मजिस्ट्रेट का हाथ कांप रहा है क्योंकि इतनी हुजूम भीड़ जुट गई गांधी के लिए, इसलिए जुट गई। कॉलोनियल डेट से 1917 तक भारतीय जनमानस को टच करने वाला, जगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं हुआ। आप किसी की राष्ट्रीयता पर प्रश्न नहीं कर सकते। बाल ने कहा स्वतंत्रता जन्म से अधिकार है। 1989 में ही एक युवा लाला लाजपत राय ने कांग्रेस में विद्रोह कर दिया सम्मेलन में कि नहीं, आजादी से कंप्लीट हम तैयार हो। बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रीयता उग्र राष्ट्रीयता, लेकिन जनमानस के हृदय को टच करने का काम गांधी ने इसलिए नहीं किया। तो आजादी आंदोलन नहीं था, इसलिए किया कि गरीबी और कृषि का अत्याचार लोगों को इतना सता रहा था। उनको लगा इस एक व्यक्ति, कहां गुजराती बोलने वाला, गुजरात का रहने वाला, अफ्रीका से आया, और एक व्यक्ति गांव पहुंच गया, गरीबों के पास पहुंचा, ग्रामीण समाज में पहुंच गया। यह उनके अंदर दबे हुए रोष की अभिव्यक्ति थी और गांधी को उसी ने साहस दिया, उसी ने गांधी को साहस दिया। और गांधी ने मजिस्ट्रेट को कहा नहीं, मैं कानून तोड़ते रहूंगा, आपको जो करना है करना, मुझे बंद कर लीजिए। पानी की आदि उन्होंने पहले कह दिया था मैं जेल जाऊंगा। मेरे साथ वही जुटे जो जेल जाने के लिए तैयार है, हिंसा और मारपीट के लिए नहीं। जो भी पहुंचे, चाहे बाद में जितने लोग पहुंचे, सबको गांधी ने एक ही कहा कि आप जेल जाने के लिए तैयार हैं तो मेरे साथ रहें, नहीं तो चले जाइए वापस। मित्रों, मजिस्ट्रेट ने एब्जॉर्ब कर दिया सेशन को, उसे समझ नहीं आता क्या करें, और फिर पटना से दिल्ली तक संपर्क जब हुई तो कहा गया कि इस व्यक्ति को तुम छेड़ रहे हो, ये तो अफ्रीका में दंगा और क्या क्या नहीं करा कर आया है, क्यों इस व्यक्ति से उलझ गए। अंग्रेजी देश का उलझना, राजकुमार शुक्ल द्वारा में लाना, रामनवमी हो गया और बहुत सारे लोगों का सहयोग, आम लोगों का सहयोग। इसी चंपारण में मोहनचंद करमचंद गांधी को गांधी बना देता है, एक अलग व्यक्ति बनाता है, एक अलग व्यक्तित्व देता है। और उसकी दंडी मार्च सोची, मैं गांधी से साहस की, आज हमें आप इसकी कमी है, न्याय के प्रति लड़ने की साहस की कमी। दंडी मार्च के बाद वायसराय गांधी को मिलने के लिए बुलाते, गांधी जाते। कभी गांधी ने नहीं कहा कि मैं बात नहीं करूंगा, गांधी बराबर जब भी बुलाहट आई बात करूंगा। और गांधी के बाद में कभी जो एजेंडा थे, जो गांधी चाहते उसको कहते नहीं हुआ। गांधी के पास कई अस्त्र थे, सत्याग्रह, स्वविनय अभियान, आंदोलन, अहिंसा, आम लोगों के साथ उपवास, लंबी अवधि तक उपवास। गांधी के उस समय के विश्व में अनोखा experiments were completely different from any political, social, any kind of leadership in the entire world. He was experimenting completely a different kinds of action in the society. ये गांधी। नमक सत्याग्रह के बाद वायसराय बनाते हैं, गांधी मिलने जाते हैं, गांधी ना कोई फूल लेकर जाते हैं ना। गांधी अपने पॉकेट में थोड़ा नमक रखते, जैसे मजिस्ट्रेट मिलने के लिए हाथ बढ़ाता है, गांधी उसके हाथ में निकाल के नमक दे देते। मित्रों, उस वायसराय को हिम्मत नहीं हुई इस नमक को फेंक दे। गांधी क्या करे, वायसराय क्रोध में आकर नमक फेंक सकते थे, हंसते हुए रख लिया। ये गांधी का व्यक्तित्व था, इतनी बड़ी सत्ता जिसका सूर्यास्त नहीं था, जिसके सत्ता में सूर्यास्त नहीं था। इंडिया में सूर्यास्त हुआ, दूसरे राज्य में सूर्योदय हो रहा था। इतने बड़े सत्ता के इतने बड़े पदाधिकारी के हाथ कांपने लगे होंगे।
या कांपते थे या नहीं, लेकिन नमक फेंका नहीं। उस नमक को उन्होंने टेबल पर रखकर मुस्कुराते हुए गांधी को बैठने दिया। ये क्यों? ये एक ईमानदार गांधी, एक साहसी गांधी, सत्य पर अड़ी रहने वाला गांधी था। एक और घटना बताता हूं। गांधी को वायसराय ने शिमला में बुलाया। लोगों ने मना किया, कागजी में जाऊंगा। शिमला रेलवे स्टेशन पर गांधी जब उतरते हैं तो वायसराय ने वहां इनको ले जाने के लिए एक वो गाड़ी भेजी थी जो कि मनुष्य खींचता है, जो कलकत्ता में आज भी संभवतः है, मैन ड्राइवन कार। गांधी ने देखते हुए कहा कि कितनी दूर है वायसराय का आवास। किसी ने कहा कि 3 कोस। गांधी ने उसके पीठ को थपथपाया जो खींचने वाला था और पैदल चल। किसी ने वायसराय कार्यालय में उसमें तो लैंडलाइन फोन किया, आदि हुआ गाड़ी खींची जाए। जब तक वहां से गाड़ी चलती, वायसराय को शायद क्रोध भी हुआ, कुछ लोग कहते नहीं भेजेंगे, लेकिन तब तक गांधी अपने लंबे पांव से निकलते हुए वायसराय के घर तक चले गए। और इन्होंने जो मुलाकात की, कहीं उनके हाव भाव में, जिसको मैंने पहले कहा बॉडी लैंग्वेज पर से ऐसा नहीं लगा कि उनको थकावट है, नाराज है, और उसी प्रकार मुस्कुराते हुए। और फिर गांधी पैदल ही चल दिया, कोई सवारी की प्रतीक्षा नहीं की। मित्रों, ये विशेषताएं उन्होंने विकसित की। चंपारण सत्याग्रह में जो लोगों ने सहयोग दिया, चंपारण सत्याग्रह में ब्रिटिश सरकार गांधी के पहले ही हमले में लड़खड़ा गई थी। चंपारण में लड़खड़ाना, ब्रिटिश सत्ता की नींव यही हिलनी शुरू हो गई थी। मित्रों, इस चरित्र के प्रतिभा के व्यक्ति थे गांधी। मित्रों, आज के युग में अगर आप देखें तो गांधी के पूरे गांधी वांग्मय को पढ़ें, क्योंकि गांधी ने कोई सिद्धांत छोड़ लिखा नहीं, हम उनके कार्य के आचरण से ही निकालते हैं। गांधी का आर्थिक दर्शन, गांधी का सामाजिक दर्शन, राष्ट्रीय दर्शन इत्यादि। अब राष्ट्रवाद पर नहीं जा बता दूंगा गांधी पर जो भी आरोप आते, लेकिन एक देखिए, जब देश का विभाजन हो जाता है, पाकिस्तानी सेनाएं कबायली के रूप में कश्मीर में हो जाती हैं। तय हुआ है कि अगले दिन सेना को कश्मीर भेजा जाए और उसे खदेड़ा जाए। गांधी और नेहरू, जानते हो, फेमस किताब है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू बाय दुर्गा दास। में इसकी चर्चा है कि पटेल और नेहरू में होता है कि अगर हम सेना गिरा रहे, गांधी क्या बोलेगा, क्या करेगा, ठिकाना नहीं है। गांधी जीवित थे उसमें, क्या करेंगे? तो जनरल करियप्पा को नेहरू कहते नहीं, आप गांधी के पास आएंगे, मैं नहीं, तुम लोग नहीं, आप जाए, आप पूछे कि बापू क्या करें। करियप्पा जाते हैं गांधी से मिलने। गांधी ने कहा ये खोटे थे, मैं बिल्कुल हूबहू लगभग वही बोल रहा हूं, ये सैनिक क्या करें? तब तक लड़े जब तक कि देश की भूमि को ये मुक्त नहीं कर। गांधी की अहिंसा में कायरता नहीं थी, गांधी की अहिंसा कायरता से मुक्त था। ये तब तक लड़े जब तक कि अपनी भूमि को मुक्त ना करा ले। मैं उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद देता हूं। करियप्पा के लिए मतलब साफ था, अगले दिन गांधी का कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं आया। गांधी से जो शंकाएं थी वो दूर हो गई। इसके बाद करियप्पा विनोबा भावे से भी मिलते, क्योंकि उस विनोबा भाई युवा थे और उनमें भी प्रभाव लोग कहते थे। जब तो विनोबा से मिलते हैं, विनोबा ने कहा कि यदि धुआं दिखाई दे रहा हो तो समझ लीजिए कि वहां आग लगा है, इसलिए आग बुझाने के लिए आप अपनी सैनिकों को भेजें।
इसलिए ये भी नहीं समझा जाए कि गांधी का हिंसा सीमा के प्रति, जिस भारत को बनाया गया उसके प्रति कोई दुराग्रह था, उस पर उनके दृष्टिकोण बिल्कुल साफ। योगी अरविंद ने 1941 ईस्वी फरवरी महीने में अपने भाषण में कहा कि भारत नाम का कोई देश नहीं था पहले, देश नहीं था। अभी देखें, भारत देश नहीं था, भारत एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति थी, भारतीयता एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति थी या भावनात्मक लगाव की अभिव्यक्ति थी। हमारे धर्म ग्रंथों ने यह अभिव्यक्ति दिया था, जम्बू द्वीप कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भूमि है, एक भूखंड है, लेकिन इसकी कोई राजनीतिक सीमांकन नहीं था। इसका सबसे बड़ा कारण था ये विविधताओं का देश था। एक ही भूमि में जम्मू द्वीप से आप कहते हैं, हिमालय के दक्षिण का भाग से कहते हैं, कहीं राजस्थान मरुस्थल था तो केरल में उनका मैदान था, स्थानीय भाषा थी, कश्मीर और बाढ़ था। अलग अलग खान पान, रहन सहन, बोल चाल, संस्कृति, डांस, नाच, सब कुछ अलग थे। उस बिखराव में एक जो भौगोलिक यूनिफिकेशन था, कल्चरल यूनिफिकेशन था, योगी अरविंद ने कहा उसको किसने दिया। आज यदि गांधी को ही आवाज देते हैं तो हिंदू पुरुष के पास रहने वाला फ्रंटियर गांधी भी वही बातें बोलता है। शुद्ध मद्रास में रहने वाला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वही बात बोलते हैं। ये सारे विविधताओं के बीच, योगी अरविंद ने कहा, विविधताओं के बीच एकता लाकर एक आंदोलन खड़ा करने वाले व्यक्ति ने ही नए भारत की नींव रखी। और मित्रों, वो नींव गांधी ने कभी नहीं कहा कि मैं भारत बना रहा हूं। वो तो कहीं किसानों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, कहीं स्वच्छता की बात करते हैं, कहीं छुआछूत की समाप्ति की बात करते हैं, कहीं कहते हैं चर्चा काटते जीवन का। वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि जब वो सबको चर्चा काटते कहते हैं तो सभी गरीबों को जोड़ते हैं। जब वो सम धर्म भाव की बात करते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो सभी धर्मों को जोड़ते हैं। और जिसके भी जाना हो बेहिचक चला जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये मित्रों, गांधी आज की चुनौतियों के बड़े विचार की विषय है। ये बता दूं, गांधी के कार्यों को अगर संकलन करें तो आपको लगेगा कि गांधी के 11 पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे गांधी का काम उनके विविध लेखों से, उनके विविध भाषणों से संकलन किया से आता है। जैसे गांधी सदैव न्याय के साथ लड़ने वाला व्यक्ति, फाइटिंग फॉर जस्टिस। चंपारण तक आना उसी का एक प्रमाण जहां मिला। फिर गांधी की दूसरी जो अस्त्र था वो अहिंसा। देखिए, गांधी सूफी संत के अहिंसावादी प्रचार और संदेश और कविताएं और युक्तियों से भिन्न था। वो बोलते हुए चले गए, वाहन पूजे हरिजनों में बातें, ये क्या कहेगा, बहुत सारे में बातें कहा उन्होंने। वो समाज में परिवर्तन नहीं ला सके, इसलिए कि उन्होंने परिवर्तन के लिए समाज में बैठकर काम नहीं, उन्होंने संदेश तो जरूर दिया, वो परिवर्तन नहीं आ सका। गांधी ने अहिंसा के साथ अपने कार्यों को किया। अंग्रेज सत्ता से लड़ना संभव नहीं, बंदूक और गोलियों से नहीं लड़ सकता। गांधी का अहिंसा, जो गांधी ने उसका उपयोग किया, आप मुझे मारो मैं खड़ा हूं, फिर मैं यही काम करूंगा। गांधी ने थका दिया विदेशी सत्ता को,
अपने अहिंसावादी पसंद। गांधी का तीसरा था सत्याग्रह। अगर आप सत्य नहीं मानते हैं तो मैं स्वविनय अवज्ञा आंदोलन करूंगा, सत्याग्रह करूंगा, आपको विवश करूंगा। समाज को कि भारतीय समाज में मोरल वैल्यू, इथिकल वैल्यू हाई स्टैंडर्ड रहा करे, तो वो कहीं ना कहीं आपके खून में समाया हुआ था। गांधी की इस चीज के पीछे लोग लग गए, बिहार में, गांव में, जहां पर जिसको हुआ सभी तरह से लोग गांधी के साथ हो गए। फिर मित्रों, छुआछूत का विरोध। गांधी जी ये नहीं था कि वो हिंदू धर्म में सुधारवादी आंदोलन चला रहे हैं। गांधी ने सिर्फ इतना ही तो कहा कि भाई सब एक है, इससे उनको अलग कर। अब देखिए, चंपारण में जब अनुग्रह बाबू पहुंचते हैं तो पूरा तामझाम, एक खाना बनाने वाला है, एक सामान ढोने, और ऐसे राजेंद्र बाबू पहुंचते हैं जो सबके साथ आदमी है। गांधी ने पूछा ये सब क्यों लाए? सबके चूल्हे अलग बनने लगे थे। तो गांधी ने कहा कि आप रखिए, आप चूल्हा तो एक ही है, हम सब एक जगह खाना खाएंगे। अब खुद गांधी चूल्हे में किचन में जाके खाना बनाने लगते, सबको खिलाएंगे। अब सबको भेज दीजिए, घर अपना काम करेगा। इसी उलझन में देर होती है, पावेल को ट्रेन पकड़ना है और पहुंचे हुए तो गांधी स्वयं रोटी बेलने लगते। एक ऐसा गांधी का ये काम, गांधी को सिर्फ नाम नहीं दिया, इन कामों ने गांधी को शक्ति दी और समाज को एक ऐसा संदेश दिया कि किस बात का छुआछूत, किस बात का भेदभाव, सब एक है। गांधी ने भेदभाव, छुआछूत जैसी चीजों को मिटाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से जितना काम किया, कानून बना के भी सरकार ने किया, कानून बनाकर जो काम ये गांधी ने किया। फिर गांधी का स्वच्छता अभियान, स्वच्छता जो आज हम अभियान चला रहे थे, 150 किलोमीटर से चलाया पूरे देश में। गांधी कहाँ रहते थे? स्वयं सफाई करते, सबको प्रेरित करते थे, कस्तूरबा करते थे। तो ये स्वयं करके लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते थे। और महिला शिक्षा तक चंपारण में ही कस्तूरबा को इसलिए बुलाया गया था कि वो लड़कियों को, आसपास के गांव को, महिलाओं को पढ़ा सके। तो गांधी ने 17 में ही एक चंपारण प्रवास के समय कितने एक्सपेरिमेंट कर लिए, कितने काम कर लिए, जिसने उनको टॉयन के अनुसार 5 मांगों में से एक बना दिया है। फिर मित्रों, सर्वधर्म समभाव, ये तो गांधी का ऐसा था। भारत विभाजन की तरफ बढ़ रहा था, धर्म के नाम पर अंग्रेजों ने रिप्रेजेंटेटिव तय करना शुरू कर दिए थे बहुत सारे। लेकिन गांधी एक बात एकमात्र था, जहां आंदोलन, जहां हंगामा हो, बिना किसी बॉडीगार्ड, बिना सुरक्षा चल, और दंगाई कोई भी। गांधी के व्यक्तित्व की शक्ति उस हर जगह दंगाइयों पर ऊपर था। किसी दंगाई ने गांधी की हत्या नहीं की थी। गांधी की हत्या का इतिहास दूसरा है, दंगाई ने नहीं किया। जिस दंगा में गांधी के नेहरू आदि तवा रहते थे कि बीच में चले जाते हैं, कोई मार देगा, लेकिन कहीं दंगाइयों ने हत्या नहीं की। और गांधी के सामने सभी क्रूर से क्रूर दंगाई नतमस्तक हुआ। इसलिए धार्मिक समभाव का इतना बड़ा देवलोक कोई नहीं हुआ, यहां ही नहीं मित्रों, दुनिया में नहीं हुआ। आप मंडेला को ले, मार्टिन लूथर किंग को ले, फोटो तुलना करें, तब आपको डिफरेंस का पता चलेगा कि कैसे गांधी वाज डेफिनेटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, इनकम्प्रिहेंसिबल। तो फिर देखिए, आज हम बात करते हैं पर्यावरण की। गांधी ने उसी समय कहा, 1918 में काठियावाड़ में अकाल आया था, वहां गांधी गए थे। अब घूम घूम कर सभी प्रिंसली स्टेट्स को कहा कि आप सिंचाई की व्यवस्था कीजिए और
यहाँ मोटे अनाज होते हैं, इसलिए अधिक सिंचाई नहीं, चावल के लिए नहीं करना है। यहाँ जो प्रकृति ने अनाज दिया है उसी की व्यवस्था करनी है। वाटर कंजर्वेशन की आज इतनी हम बात करते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक रिलेशन करके फसलों की बात करते हैं। गांधी तो किसी के 1930 में गांधी लिखते हैं वर्षा के जल को बचाओ। गांधी ने 30 में कहा, महाराज तो आजादी राजतंत्र तो हमें अंग्रेजों से ही नहीं लेनी। हमें 3 चीज की आजादी अगर मिलेगी तभी खुशहाल जीवन होगा। स्वच्छ जल पाने की आजादी, जल पर किसी का अधिकार नहीं है, ये प्रकृति ने हमको दिया है। गांधी ने गांधी आंदोलन में यही कहा था, ये तो नेचर ने हमको दिया है, ये अंग्रेज कैसे हमको रोक सकता है। नेचर है जीवन में, मेकिंग ओनली दैट एक्सेस टू द सी वाटर। हम पहुंच बढ़ाकर प्रोसेस करके नमक परंपरा करते हैं। समुद्र ने जैसे जमीन पर हमको अधिकार दिया है, वैसे जमीन पर हमारा अधिकार है, वैसे समुद्र पर भी मानव समुदाय का अधिकार है। नमक बनाने से आप इसी गांधी ने कहा कि स्वच्छ पानी, सबको अच्छा जल मिले, यह मनुष्य का इंटाइटलमेंट, यह पूरा अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। स्वच्छ वायु, गांधी वायु की तरह की, फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, और जीने लायक अच्छा भोजन। हमारी आजादी की लड़ाई सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं है, ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का है, और इससे हम प्रकृति को सम्मानित करते हैं। गांधी ने लिखा, बहुत चर्चित कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन अगर हम संसाधनों का इसी प्रकार उपयोग करते गए, दुरुपयोग करते गए, तो फिर कई प्लैनेट्स बनाने होंगे मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। इसलिए गांधी जो देखते थे उसको अपने जीवन में ढालते थे, और वे गांधी के काम आज हमारे आपके लिए मित्रों। आपको बता दूं 3 चीजों की तरफ में, उसके पहले बता दूं, एक गांधी का स्वदेशी और आत्मनिर्भर अभियान भी बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके उन्होंने खादी की वकालत की, चरखा चलाया। गांधी ने खुद लिखा, स्वराज थ्रू स्पिनिंग, सूत काटकर स्वराज लाए। गांधी ने सभी स्कूलों में सूत काटने की ट्रेनिंग दी जाए, और गांधी जी ने यह भी लिखा कि मेरा कतई उद्देश्य है कि तकली और चरखा काट के ही सभी जीवन बिताएं। गांधी की सोच कितनी बड़ी थी, ये तकली, चरखा, सूत, हैंडलूम हम तब तक चलाएंगे जब तक कि अपने लोगों के लिए रोजगार की कोई वैकल्पिक अर्थव्यवस्था नहीं। अगर हम वैकल्पिक सही अर्थव्यवस्था विकसित कर सके तो वो दूसरे काम में भी करेंगे। ऐसा नहीं कि सभी को ये कार्य लाभ है, लेकिन तब तक कोई रोजगार नहीं है तो इसमें, क्योंकि ब्रिटिश काल में भारत में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए युवक ना भटके, कार्यकारी आबादी ना भटके, इसलिए उनको रोजगार देना, ये खादी का विकास और ग्रामीण उद्योगों का विकास गांधी की प्राथमिक। उन्होंने साबरमती आश्रम में गांधी, बाद में लोगों नाम भी दिया गांधी मॉडल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 18 पॉइंट का एक कार्यक्रम चलाया था। गांधी जी ने वहां लिख के दिया था अपने साबरमती आश्रम में क्या 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 करें, उसमें जल, वाटर, खेती आदि विभिन्न, जिससे कि एक नया गांव बन सके, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हो। गांधी ने आत्मनिर्भर भारत की भी डिफिनेशन दी, आत्मनिर्भर गांव। उन्होंने कहा कि हम जब कहते हैं आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट विलेज, इसका मतलब ये है एवरी विलेज ए रिपब्लिक। गांधी जी ने रिपब्लिक शब्द का जो हम देंगे पंचायती, एवरी विलेज ए रिपब्लिक, and villages to depend on other only for those produces which are essential but are not producing। आपके यहाँ नहीं होता है लेकिन वो आवश्यक है, तो
उसके लिए हम जरूर दूसरे पे डिपेंड करें, और कुछ ऐसे जो मेरे यहाँ होते उनके नाते वो हम पर डिपेंड करेंगे। ये आप मेरे गाँव की संकल्पना गांधी की भी, अभी आपके प्रधानमंत्री जी आपने भारत की भी संकल्पना की है, आप देखिए कि उससे क्या करने है। सादगी से भरा जीवन, आपने खुद देखा गांधी को अपने जीने पे कितना खर्च होता है। आधे शरीर पे तो कपड़ा रखते थे इसलिए कि देश के लोग भोजन में सादगी, बकरी पालते थे, फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में बकरी लेके चले गए, गाय पालन करते थे। गांधी के जीवन शैली को अपनाना और समझना और उसे कार्य रूप देना कोई आसान। अगर गांधी के इन कार्यों को आप अपनाते हैं मित्रों, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी जो अभी ह्यू एंड क्राइम अचीव हुई है, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। गांधी कभी नहीं कहते हैं कि तकनीकी का विकास नहीं हो, गांधी कभी नहीं कहते कि आप विकसित ना हो, गांधी कहते हैं कि विकास ऐसा हो जिसमें सबको उसका प्रकृति को अपना अधिकार है, आपको है, आने वाली पीढ़ी को है, पड़ोसियों का अधिकार है, हमें सबको देखना होगा। ये गांधीयन मॉडल ऑन डेवलपमेंट, लाइवलीहुड एंड हैप्पीनेस है। गांधी ने खुद कोई मॉडल नहीं बनाया, बट यू सी द प्रैक्टिसेस व्हाट गांधी डिड, then on the basis of those practices conclusions को इजीली मित्रों, आज गांधी की कितनी जरूरत है मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहूंगा। अभी आप जानते होंगे बहुत सारे लोग, जर्मनी में एक पॉलिटिकल पार्टी का ग्रीन पार्टी, मैडम कैली फाउंडर ग्रीन पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी तेजी से प्रचार होता है। उसके मैडम कैली कहते हैं कि यह पार्टी ग्रीन प्लैनेट, खुशहाल पृथ्वी के लिए, सिर्फ जर्मनी के लिए। और उसने कहा हमारे 2 ही सिद्धांत हैं, 2 ही मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है। पहला है चेंज इन लाइफ स्टाइल, दूसरा है चेंज इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन। लाइफ स्टाइल में चेंज, और कैसा चेंज? कम से कम मेटेरियलिस्टिक स्ट्रक्चरल सिस्टम का निर्माण हो। जब हम इतने कपड़े पहनते हैं, हर समय एसी में रहना चाहते हैं, तो इसको अगर मिनिमाइज कर दें आप, तो आपकी लाइफ स्टाइल अगर सिंप्लीफाइड हो थोड़ा ही, तो उसका असर किस पर पड़ेगा? ओजोन पर पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैस पड़ेगा, और प्लैनेट विल सर्वाइव फॉर सम टाइम्स। ये लाइफ का प्रोडक्शन के मोड को कैली कहती है। चेंज इन लाइफ स्टाइल एंड चेंज इन प्रोडक्शन मोड का अच्छा एग्जाम्पल है गांधीयन लाइफ स्टाइल, गांधीयन प्रोडक्शन मोड। हम कम से कम फॉसिल ऊर्जा का प्रयोग करें। देखिए मित्रों, आप और हम एक गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। खासकर विद्यार्थियों में कहूंगा, आप 21वीं शताब्दी के अंत तक रहेंगे। अगर पेरिस एकॉर्ड नहीं लागू हुआ तो मिनिमम टेम्परेचर इंक्रीज मिनिमम 2 डिग्री सेल्सियस होगा, मैक्सिमम 7 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। कोई से नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार के क्लाइमेटिक वॉलंटियर आ रहे हैं, क्लाइमेटिक चॉस हो रहा है, वैसी स्थिति में कैली और जर्मनी के लोगों का समझना कि गांधीयन वे फॉर लिविंग, गांधीयन वे फॉर इकोनॉमी is the need of the time. आप समझें कि what extent गांधी जी relevant, how गांधी जी relevant, गांधी पर मैंने पहले कहा तो हम क्या कर रहे हैं? तो कहीं गांधी सदन बना रहे हैं, कहीं गांधी छात्रावास बना रहे हैं। ये गांधी नहीं था। गांधीवाद मत जो है, हम अपने काम, आचरण, व्यवहार में गांधी को कितना अपनाते हैं। ये जर्मनी में सारी सुख सुविधा भोगने के बाद अभी इसको, और बहुत जल्दी की पॉलिटिकल पार्टी गेटिंग रूट्स, आप देखें एक परिवर्तन की लहर है। दूसरा मैं आपका ध्यान रहा, किताब निकली है सर्वाइविंग द सेंचुरी फेसिंग क्लाइमेटिक क्लॉस,
Surviving the century, facing climatic loss. The editor of the book is Professor Herbert Dept. ये डच हैं और इसके पब्लिशर हैं वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल। ये किताब कुछ ही दिन पहले आई है और इस किताब में कहा है अगर पृथ्वी को बचाना है तो इसके लिए आपको 4 लॉ ऑफ द नेचर आपको भी इम्प्लीमेंट, अदरवाइज नो वन कैन सर्वाइव। इसका कंक्लूजन यही है, कहा कि और भी पूर्व में देखिए, अगर कोई जवाबी ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी की मालूम होगा कि क्लाइमेटिक चेंज इज नॉट ए न्यू थिंग। क्लाइमेट चेंज पूर्व में बहुत हुए हैं। आज डायनासोर क्यों खत्म हो गया? क्लाइमेट चेंज वाज वन ऑफ द फैक्टर्स। आज सिंधु घाटी की सभ्यता का निशान मिट गया। क्लाइमेटिक चेंज वाज वन ऑफ द फैक्टर्स और भी कर रहे क्लाइमेट चेंज टुक प्लेस। लेकिन मित्रों, पहले जो क्लाइमेटिक चेंज हुई 20वीं शताब्दी के पूर्व का चेंज था, दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। हाउ धीरे धीरे विश्व एडजस्ट करते जाता था, संघर्ष की क्षम नहीं हुआ तो धीरे धीरे एंड द फिटेस्ट सर्वाइव। बिल्कुल विनाश नहीं हुआ, फिटेस्ट सर्वाइव। न्यू रेसेस, न्यू सब रेसेस मच। लेकिन आज जो परिवर्तन हो रहा है इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी। ये घातात्मक है, रिवॉल्यूशन जैसा है। कम समय में ज्यादा, आप ये समझ लें कि 80 साल में तापमान में 7 डिग्री का वृद्धि होना, इसके परिणामों को मैं जब आप बताऊं तो सिंपल समझ लें, करीब 1 दर्जन देश आइलैंड कंट्रीज का नामो निशान मिला है। आप मालदीव को खोजते चलेंगे कहां है, ऊपर से कहेंगे इसी जगह का हुआ देश। मार्शल आइलैंड खत्म हो जाएगा, टवालू आइलैंड भी खत्म हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे रीयूनियन द्वीप खत्म हो जाएंगे, आपके लक्षद्वीप पूर्णतः खत्म हो जाएंगे, सिर्फ अंडमान निकोबार की शिखर या चोटियां दिखाई देंगी। और बांग्लादेश का लगभग 35 से 37% भूभाग जलमग्न हो जाएगा, जो फ्लैट है, समुद्री जल गर्मी से बहेगा। तो मित्रों ये सिर्फ मैं कह रहा हूं कि इस पुस्तक में जो 4 जस्ट एक पॉइंट और कहूंगा खत्म कर दूंगा। वो उन्होंने कहा नॉन वायलेंस। देखिए कहा गांधी के पास समर्पण इस पुस्तक में है, कहता है अहिंसावादी मार्ग अपनाइए अगर इस पृथ्वी पर जीना है। नॉन वायलेंस पहला पॉइंट क्या है, ये अहिंसावादी मार्ग अपनाइएगा तो ये जंगल में रोज जो नकली शिकार करते हैं, जेल जाते हैं, हमारे फिल्म नेताओं को कोर्ट जाना पड़ता है, वो सबसे बचिए। Non-violence is the most powerful tool if you intend to survive and see the earth survives. दूसरा कहा सस्टेनेबिलिटी, जो गांधी ने कहा सस्टेनेबिलिटी, वही काम कीजिए जिसकी इजाजत फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ दैट सिस्टम देता है। जल, वायु, स्थल खंड, समुद्र खंड या ओशन लैंड्स, ये जिसके आधार दे वही काम कीजिए। कम से कम कुछ दिनों के लिए से एक समझौता कर लीजिए प्रकृति से। इस मानव खूबसूरत प्रकृति की है, अभी खोजे भी किसी ब्रह्मांड में नहीं मिल रहा है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ नेचर एंड वी शुड सर्वाइव एंड सी वेदर एनी अदर हेवनली बॉडी हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स और नॉट। तीसरा का रिस्पेक्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर। कहा कि एक देश, इसी को आपने कि कंट्रीज मस्ट रिस्पेक्ट इज एसेंशियल। मित्रों, प्रजातंत्र की सबसे विशेषता है कि सहमति और असहमति साथ चलती है। ये प्रजातंत्र है। सहमति, विरोधी दल असहमत है, हम सहमत हैं, विचार हुआ, विमर्श हुआ, लेकिन बोथ आर टू इंपॉर्टेंट फेसेस ऑफ द कॉइन। लेकिन अगर आप सहमति नहीं, ठीक है आप असहमत है, लेकिन आपने चुनाव से इनको जिताया है, आप ही ने मत दिया है,
तो उनके साथ मेजॉरिटी ऑफ द वोट है, therefore let them govern. The year will come when you will change it. हाँ, आपका विरोध दर्ज करते हैं, आपकी नीति गलत है। आपने तो चुनाव में कहा होगा कि मेरी ये नीति गलत, मेरी ये नीति है, उनका ये नीति गलत है। पब्लिक ने आपके नीतियों को नकार कर दिया, तो यू मस्ट सो प्रोटेस्ट बट मस्ट वर्क टुगेदर। ये इससे क्या है, सामाजिक तनाव और हिंसा नहीं होगा। इसलिए कहा कि ये टाइम है फॉर रिस्पेक्ट। और फिर का जस्टिस मस्ट बी डिलीवर्ड, जुडिशियस जस्टिस। ये चारों तरफ देखें तो गांधी के ये गांधी के। और अंतिम जो मैं कहूंगा आपको, वो टाइम मैजिक वर्ल्ड के आप जानते सब बड़े बड़े लोगों का लिस्ट निकालता है, टॉप 10%, टॉप 10 वेल्थिएस्ट, बहुत सारे। इसके 9th इशू में कहा गया है, 9 अप्रैल 2007 को इन्होंने एक स्पेशल इशू निकाला ऑन द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और कहा कंज्यूम लेस, कंज्यूम लेस, शेयर मोर, simplify life. This is Gandhian way of livelihood, living. This is required in the world. Time and friends, I'm concluding here, but I'm telling you, ये बहुत ही और सी देश में रहा है। अगर हमने थोड़ा बहुत भी नहीं अपनाया, और हमारे लिए आज सबसे जरूरी है कि बड़ी मुश्किल से इस देश को एक खूबसूरत संविधान, खूबसूरत बड़ा सीमा मिला है विविधताओं के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लैंड, वी आर इन द मिस्ट ऑफ डाइवर्सिटी। इसको बचाना है तो टाइम मेकिंग का जो है, इसको अगर अपनाएंगे हम, मितव्ययी बनना होगा, मिलजुल कर रहना होगा, और स्वच्छ साफ सुथरा सादा जीवन के लिए आवश्यक नहीं है कि धोती कुर्ता और गांधी टोपी, but simple that will be important. I'm sure the young people generation sitting here will take some serious. I'm not telling क्योंकि गांधीवाद तो वही अपने से हो जाए, लेकिन आप विचार जरूर करें गांधी क्या चाहता है, आज गांधी कितना महत्वपूर्ण है। थैंक यू। थैंक यू। किसी भी प्रोफेसर साहब को बुलाने से पहले 50 मिनट का इंतजाम करना ही चाहिए। यह थोड़ी गड़बड़ी है मैनेजिंग कमेटी की ओर से। सर मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब डीन ऑफ सोशल साइंसेस, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर गोपी डबन प्रसाद सिंह सर, प्लीज कम टू द डायस। सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान के संकायाध्यक्ष के नाते मैं गोपी प्रसाद सिंह मंचासीन विशिष्टजन, मंच से इतर विशिष्टजन का स्वागत करता हूं और नमन करता हूं। समाज दार्शनिक एवं मानवीयता के पोषक माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह साहब, भी भाषण करता विद्वान प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह साहब, गुरुवर प्रोफेसर कामेश्वर झा साहब, प्रोफेसर प्रभाकर पाठक साहब एवं संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण अशोक कुमार झा साहब, ख्याति प्राप्त साहित्यकार एवं समर्पित कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब, चर्चित राजनीतिक विज्ञानी, राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष एवं सम्मेलन के अध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण जी, शारीन अकादमिक मुनि एवं सम्मेलन के संगठन सचिव प्रोफेसर मुनीश्वर यादव जी, संयोजन समिति के संयोजक डॉक्टर मुकुल बिहारी वर्मा जी, संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम राय जी, विभाग के कर्मचारी बंधु, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष व शिक्षकगण, सभागार में उपस्थित अन्य विद्वतजन
मीडिया बंधु एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, आज से प्रारंभ अंतरराष्ट्रीय 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय वर्तमान युग में गांधीवाद की प्रासंगिकता विशेष महत्वपूर्ण एवं समसामयिक है। ऐसे विषय चयन के लिए सर्वप्रथम मैं विभागीय अकादमिकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। महानुभाव, जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी इंसानों में चमत्कार हैं। गांधीवाद वह धारणा है जो मन, वचन एवं कर्म के स्तर पर सही होना है। ज्ञान अपने आप में सर्वोत्तम है, परंतु उस ज्ञान का व्यवहार में होना गांधीवाद है, जिसे हम समाजशास्त्र की भाषा में व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। गांधीवाद सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह और स्वाद, स्वदेशी, स्पर्श भावना, वैश्विक मानव की एकता, समानता, राष्ट्रभाषा, आंतरिक उत्थान, समर्पण एवं सत्याग्रह आदि की प्रक्रिया, जिसमें समय निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन, साहस, समानुभूति, गतिशीलता एवं उच्च सहभागिता जैसे आधुनिकता के गुण सन्निहित हैं, जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदि जीवन को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित रखता है। यदि मैं सामाजिक जीवन के एक अनिवार्य पहलू शिक्षा को गांधीवाद से जोड़ूं, तो उन्होंने शिक्षा को व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की चौतरफा विकास माना है। इस रूप में शिक्षा की प्रक्रिया परिवार से प्रारंभ होकर औपचारिक पाठशाला तक जा पहुंचती है। औपचारिक पाठशाला, जहां हम खड़े हैं की पहचान उसके भवनों, पुस्तकालय के पुस्तकों, प्रयोगशाला, शोधों आदि का सर्वोत्कृष्ट होना है। परंतु गांधीवाद उस पाठशाला में सन्निहित शिक्षार्थियों, शिक्षकों एवं कार्मिकों आदि का सर्वोत्तम गुणों से युक्त होना ज्यादा प्रासंगिक है, तभी चौतरफा विकास संभव है। इस रूप में अपने आप से पूछे जाने वाले 3 प्रश्न हैं। मैं कौन हूं? दूसरा, मैं क्यों हूं? और तीसरा, मैं क्या हूं? गांधीवाद में इसका उत्तर समाहित है, जिसे ढूंढना समय की मांग है। वैसे जीवन के अर्थ को प्राप्त करना गांधीवाद है। मानववाद इसी जुबली हॉल में ललित जयंती के रोज हम सबों के माननीय कुलपति का एक व्याख्यान था। उनका कहना था, यदि परिवार को बेहतर बनाना है तो व्यक्तिगत हित से उठना होगा। यदि समाज को बेहतर बनाना है तो व्यक्तिगत हित और पारिवारिक हित से उठना होगा। और यदि राष्ट्र को बेहतर बनाना है तो
व्यक्तिगत हित, पारिवारिक हित और सामाजिक हित सोचना। और यदि वैश्विक मानव और मानवीयता को बचाना है तो व्यक्तिगत हित, पारिवारिक हित, सामाजिक हित, राष्ट्रीय हित से ऊपर उठना होगा। यही गांधीवाद। मैं गांधीवाद का सीधा अर्थ लेता हूं, ज्ञान के विज्ञान की जो चीजें हमारे पास है, सकारात्मक रूप में इसका अपने जीवन में प्रयोग करना, यही गांधीवाद है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सर ने मुझे काम में कहा था कि ये शॉर्ट और स्वीट हो, रियली शॉर्ट और स्वीट था। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अब उर्दू साहित्य के मूर्धन्य विद्वान नटराजन विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय आएंगे और उद्बोधन के लिए कुछ करके बोलेंगे कि उर्दू में बोले। आज के इस वो इंग्लिश में डालने लगे हैं। सेमिनार वेबिनार के सम्मानित अध्यक्ष, हमारे अभिभावक प्रोफेसर कामेश्वर झा साहब, मिथिला विश्वविद्यालय के मोहतरम सैफ जामिया प्रोफेसर प्रताप साहब, वाइस चांसलरों के वाइस चांसलर, मेरी मुराद है प्रोफेसर आर सिंह साहब से, क्योंकि कई छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों में आए वाइस चांसलर हैं, भारी बाबू, विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण साहब, भाई मुनेश्वर यादव साहब, घनश्याम जी वर्मा साहब, और हमारे समक्ष बैठे हुए जीवन की खुली किताब प्रोफेसर प्रभाकर पाठक साहब, पूर्व विज्ञान का अध्यक्ष सोशल साइंस डीन अनिल बाबू, फाइन आर्ट्स की डीन दोस्तम जी, अंग्रेजी के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर बच्चन साहब, मित्र बाबू, Dept.of साहब, फाइनेंशियल साहब, डायरेक्टर Dept.of, और सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगण, छात्र छात्राओं और पत्रकार बंधु, सच मानिए तो मैं जिस दिन उन्होंने कहा भाई मुनेश्वर साहब ने कि गांधी पे सेमिनार मिथिला विश्वविद्यालय में हो रहा है, तो मैंने पूछा कि ये विषय क्या है। तो उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में गांधीवाद की प्राथमिकता। तो मैं पहले भी समझता था कि भाई मुनेश्वर जी इस विश्वविद्यालय के बहुत ही समझदार प्राध्यापक हैं, लेकिन जब ये विषय उन्होंने रखा तो मैंने समझा कि वाकई बहुत समझदार हैं, कि इसलिए कि गांधी सिर्फ लिटरेचर पे बोलना तो दिन भर भी हम बोल सकते हैं, लेकिन गांधीवाद पे इसलिए नहीं बोल सकते इसलिए कि मिथिला विश्वविद्यालय का वो शिक्षक जो वर्ग में ना जाता हो, क्या वो साहस जुटा पाएगा कि इस सभा में आ जाए? मिथिला विश्वविद्यालय नहीं, देश के किसी विश्वविद्यालय का वो विभाग अध्यक्ष जो छात्रों की थीसिस पर रिकमेंड करने के लिए 2 किलो मिठाई 4 किलो मछली लेके आने की बात कर रहा हो, क्या वो गांधीवाद पे बात कर सकता है? मिथिला विश्वविद्यालय नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का वो व्यक्ति गांधी पे तो बात कर सकता है कि 2 अक्टूबर को, जैसा कि मैंने पढ़ा कि पोरबंदर का लाल 2 अक्टूबर को पैदा हुआ और 30 जनवरी को शहीद हुआ, उसको तो बोल सकता है, लेकिन उस पर नहीं बोल सकता कि गांधी ने कहा कि वो जो बकरी का दूध लाता है उससे बुला के पूछो बात कि
वो बकरी को खाना खिलाता है, लेकिन अपने दिनों दिन बहुत दुबला होता जा रहा है। उस गांधीवाद के कोई नहीं बोल सकता। वो पत्रकार बंधु, हमारे कई पत्रकार, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने साहस चुकाया है आने का। और ये जो हॉल खाली है, तो आपको बधाई देता हूँ जितेंद्र भाई जी कि आपका ये सेमिनार कामयाब है। कि गांधीवाद के सेमिनार में साहस जुटाना बहुत कम नहीं है। मुझे अच्छा सुनो, बस ये समझ लीजिए कि गांधीवाद पे वही बोल सकता है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। और में आने का मतलब डूब के आना है। वो छात्र जो कक्षाओं में नहीं जाता और हमारे सामने करना करता है कि नंबर नहीं बढ़ाया गया, क्या उसकी हिम्मत है आने की? इसलिए हॉल खाली है। उस गांधीवाद को मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं क्षमा चाहता हूं। इसलिए कि गांधी जीवन में शामिल होने का नाम, आचरण में शामिल होने का नाम, ऊंचाइयों पर बुलंदियों पर चढ़ने पर के लिए दिन भर झूठ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि अपने आप को आईने में खड़े होकर रोज देखने का काम है। ये जो धूल हमारे चेहरे पे जमी है, उसमें झूठ के पुलिंदे कितने हैं या सच्चाई के कण कितने हैं, उसका नाम गांधी है। लेकिन चूंकि भाई जितेंद्र जी ने और महेश्वर यादव जी ने यहाँ आने की दावत दी, माननीय कुलपति महोदय के साथ कुछ दिनों से काम कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि नहीं जाना चाहिए। इसलिए कुलपति जी ने एक दिन कहा कि आपके विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार साहब 10 साल 20 साल के बाद अनुकंपा को सर्विस नौकरी क्यों दे रहे हैं? तो मुझे लगा, उन्होंने कहा कि अगर आज मर जाते किसी के परिवार के, तो अनुकंपा की नौकरी तो उसे दी जाती है जो उसके घर का सहायक बन सके, सहारा बन सके। तो आप एक हफ्ते में पूरा क्यों नहीं करते इस कार्य? तो मुझे लगा कि जाना चाहिए कि एक गांधी विचार के विचारधारा को अपने जीवन का स्रोत बनाने वाले कुलपति यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं इसलिए यहाँ आया कि प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ काम करने के बाद जब शाम में पहुंचता हूँ तो कहते हैं चाय पी लिया, कहते हैं कि देखिए किसी पेंशनर जो आता है मेरे सामने खड़ा होता है तो मुझे लगता है कि हम लोग कोई काम नहीं कर रहे। तो मुझे लगा कि मुझे गांधीवाद के सेमिनार में जाना चाहिए कि प्रोफेसर सिंह प्रताप सिंह इससे कोई बची। इन्हें ये मालूम है कि हाशिए पे खड़े लोग, हम विश्वविद्यालय में एकेडमिक में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपको व्यवहारिक पक्ष की बात कह रहा हूँ। मैंने इसी तरह का सेमिनार किया था और मैं भी कभी कभी जितेंद्र नारायण जी की तरह से कुछ उनके भाषण को सुनकर कुछ सीख गया। तो एक बार क्या किया, किसी तरह गांधी पर सेमिनार कराया मैंने, और सेमिनार जब हो रहा था तो वो दलित लड़के जो हमारे धारू होते हैं, मैंने उसके गिलास में पानी पी दिया, मैंने कहा पिला दिया। तो गांधी के जो भाषण देने वाले लोग थे, मैंने उनके चेहरे को पढ़ रहा कि वो पानी पीने के लिए किसने तैयार नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उनके चेहरे का रंग था कि प्रिंसिपल जो है ये साजिश कर। तो मैं वहां उस समाज में काम करता हूँ जहां सारे पन्ने की रिपोर्ट बंदी है, गुंडा जो है इस विद्यालय में चला, उसमें गांधीवाद का सेमिनार होना, ये वाकई आपको मैं नमन करता हूँ। वहां सेमिनार करता, देखिए आजकल क्या है, बच्चे भी पढ़ाते हैं और देखिए जब एक भूगोलविद को सुन रहे हो तो आपने देखा कि गांधी को उन्होंने कहा, जाहिर सी बात है जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो गांधी के बगैर आप जीवन अछूता रह गया। तो हाल ही में मैंने जब इनका मिला तो मैंने अपने बेटे को फोन किया कि अरे वो इंटरनेशनल पॉलिसीज का छात्र है, तो मैंने उसको फोन किया कि ये बताओ कि गांधी पे कोई नई किताब आई हो तो मैं उसको पढ़ लूं। उन्होंने कहा क्या बात है? मैंने कहा भाई एक इम्तिहान मिला है, वो हमारे यहाँ सेमिनार हो रहा है, तो ये 5 साल पहले तो उन्होंने कहा कि हाल ही में किताब आई है
जेल के बाजार और एमडी श्रीनिवासन की। तो हमने कहा कौन सी किताब है? तो मेकिंग ऑफ ए हिंदू फॉर पेट्रियट द बैकग्राउंड ऑफ द गांधीज हिंदू स्वराज। तो मैंने उसको डाउनलोड किया, देखा उसको 1000 पेज की किताब है। मैंने कहा ये तो और बड़ा न्यारा हो गया। लेकिन इसी बीच में माननीय कुलपति महोदय के आदेश पर, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पटना भी जाना पड़ा। तो होटल में बैठ करके रात 2 रात में उस किताब को मैंने पढ़ ली। तो उस किताब में हिंदू स्वराज, मैंने उस किताब में ये कहा गया है कि जो भारत की राष्ट्रीयता है वो हिंदू इस पर स्थापित है। मैं बिल्कुल 100% इस बात को मानता। ये सनातन धर्म का जो स्पिरिट था, सत्यम शिवम सुंदरम वसुधैव कुटुंबकम, बस वही थ्योरी गांधी की थ्योरी। ये सत्य बोलना जीवन का सबसे सुंदरम चीज है। और पूरी दुनिया को एक परिवार मानना, किसी पंथ से ऊपर उठकर जीना गांधीवाद है। 1 जनवरी को ये किताब पब्लिश हुई। तो आज मुझे अपने आप पर फख्र हो रहा है कि मैं गांधीवाद पर जो यहाँ विचार की गंगा बह रही है उसमें शामिल हूँ। और जीवन में जो सपाट सैराबी जिसमें भी है प्यास है उसको सैराबी मिलेगी, क्योंकि यहाँ प्रोफेसर कामेश्वर दास जी का व्याख्यान होगा। माननीय प्रोफेसर सुनील प्रताप सिंह साहब माननीय कुलपति जी को सुनेंगे। और अभी हमने सुनील प्रताप सिंह साहब को सुनेंगे और राज बिहारी बाबू को सुन चुके, जिससे कई दरवाजे जो हैं कपड़ के जिस पर क्या जाले पड़े हुए थे वो खुल गए हैं। ऐसी स्थिति में गांधीवाद पर ये सेमिनार बहुत कामयाब है, जिसकी कुर्सियां खाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उर्दू साहित्य वैसे ही काबिल तारीफ है। अब हमारे इस महती सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर कामेश्वर सर और इन एग्रीमेंट विद द ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ द सेशन हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस के लिए ही पहले प्रोफेसर कामेश्वर सर आएंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मंच पर आया राजनीतिक विज्ञान के उग्र विद्वान, कुशल प्रशासक और सूबे बिहार के बहुचर्चित चेहरा आदरणीय प्रोफेसर कामेश्वर और रूसा के फाउंडर वाइस चेयरमैन continue to be there. He is still there, so I welcome him from the inner core of my heart. मैं अध्यक्ष हूँ। बड़ी परंपरा चुकी है। मुख्य अतिथि अंतिम वक्ता होते हैं और अध्यक्ष उसके बाद आगत सज्जनों का संज्ञान लेते हैं और विचारों को भी संक्षेप में अपने शब्दों में रख लेते हैं। लेकिन मुख्य अतिथि महोदय ने ही वसुधा अध्यक्षता का जो भार हम मुझे है, मैं तो एलिमेनाई हूँ उस यूनिवर्सिटी का। वर्तमान में उच्च शिक्षा परिषद में अध्यक्ष भी हूँ। राज बिहारी बाबू की कुछ कुर्बानी भी है इसमें, त्याग भी है इस पद के लिए, जिसके कारण मैं उपाध्यक्ष हूँ, ये मैं जानता हूँ। उन्हें जब कहा गया कि वे सबसे सबल दावेदार थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में 2 बार, पटना यूनिवर्सिटी में 1 बार रहने के बाद एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में मुझसे बड़ा उनका अनुभव था। यही क्राइटेरिया उसमें है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे कोई 5 साल का था उपाध्यक्ष का पुराना। उन्होंने त्याग किया जब उनको कहा गया कि मुख्यमंत्री की इच्छा है। उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी, अपना सीवी उन्होंने तब नहीं दिया। मैं आज वहां हूँ
मैं समझता हूँ भरत की तरह खड़ाऊ लेके चला रहा था अयोध्या, मैं उनके घरों को लेके उपाध्यक्ष का काम कर रहा हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। मुझे सर्वाधिक आत्मीयता मिथिला विश्वविद्यालय के संस्थापक में जबकि डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी मयूर है, एल.के. मिश्रा है, पंडित हरिनाथ मिश्र है, स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र है, डॉक्टर नागेंद्र झा है, हरिनाथ, सब लोग हैं। तो एक छोटा सिपाही उसका वॉलंटियर मैं भी मिथिला विश्वविद्यालय में मैं हूँ और मुझे गौरव है मिथिला विश्वविद्यालय में एक ऐसा कुलपति है। अभी वे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के भी पाटलिपुत्र ही बिहार है, उसके भी कुलपति वही हैं। और सबसे अधिक गौरव होता है जितने भी प्रेजेंटेशन सरकार के अंदर हुए हैं तो मिथिला विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय मतलब तब का पटना विश्वविद्यालय और अब का भी गिरीश चौधरी जी अभी है। और सर ने जो किया सेशन रेगुलराइज की तारीफ मुक्त कंठ से अशोक चौधरी ने भी की, वर्तमान शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी ने भी की है और प्रधान सचिव जी ने भी, अभी जो प्रधान सचिव हैं शिक्षा में, उन्होंने भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की मिथिला विश्वविद्यालय की और पटना विश्वविद्यालय की। मिथिला विश्वविद्यालय मतलब वर्तमान मुख्य अतिथि और आज के, तो मिथिला विश्वविद्यालय का गौरव में लिखते पधारे हैं। अवसर आ रहा है, मुश्किलें भी आती हैं, उसको सफलतापूर्वक उनकी उपस्थिति और उनकी सदिच्छा की पहले मैं बोलूं तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आंशिक रूप में अध्यक्ष की ड्यूटी भी मैं करूंगा। तो वे भी बोले होते तो मैं करता, तो मैं बाद में बताता हूं। मुझे इसका वैसे एहसास है कि इस सभा में जिस सामाजिक विज्ञान का मैं भी हूं, राजनीति शास्त्र का, उसके डीन गोपी रमन जी उपस्थित है। मुझे यह भी एहसास है कि ह्यूमैनिटीज की डीन भी यहाँ, पूर्व के डीन डॉक्टर प्रभाकर पाठक और वर्तमान डीन भी यहाँ उपस्थित हैं और सामाजिक विज्ञान के पूर्व के डीन और पॉलिटिकल साइंस के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार झा जी भी यहाँ है। कुल सचिव मुश्ताक साहब मेरे अनुज के समान हैं और उस परंपरा के पोषक हैं जिस परंपरा पर मैं भी 30 वर्षों तक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में चला। हमने कॉलेज की तरक्की को साध्य माना और साधन के संबंध में मनमानी तो नहीं की, कोई भेदभाव तो नहीं किया, कोई अनियमितता तो नहीं किया, लेकिन अपने ढंग से संस्था का विकास किया। उस रास्ते पर चलने वाले आदमी में से हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इस विश्वविद्यालय में मुख्यालय स्तर पर हमें यूजीसी को जब जवाब देना पड़ता था, अभी भी देना पड़ता है, इस नेशनल हायर एजुकेशन काउंसिल को, तो एक जगह मैं फेल करता था। जब मैं लिस्ट उठाता था तो सोशल रिप्रेजेंटेशन, वाइड स्प्रेड सोशल रिप्रेजेंटेशन, ब्रॉड बेस्ड सोशल रिप्रेजेंटेशन रिफ्लेक्ट नहीं होता था। उसे ब्रॉड बेस्ड करने की कोशिश रजिस्ट्रार, थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड को रजिस्ट्रार का है, मुख्यमंत्री को अपीलेट अथॉरिटी है और शिक्षकों में कुलपति जी का है, प्रतिकुलपति का है। तो मैं दोनों प्रतिकुलपति को भी, कुलपति को भी, कुल सचिव को भी और डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर अशोक कुमार झा जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने विश्वविद्यालय में जो शासन की प्रणाली है, डिसीजन मेकर्स हैं, उसमें सोशल रिप्रेजेंटेशन को ब्रॉड बेस्ड बनाने की कोशिश की है। एक कलंक जो मिथिला विश्वविद्यालय पर है उसको धोने के प्रयत्न में आप लोग लगे हुए हैं। और वो भी क्यों नहीं, अशोक कुमार झा एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने सीनेट सिंडिकेट की लड़ाई में कभी जातीय सभा का सहयोग नहीं माना, जातीय बैठक में शामिल नहीं हुए, हमेशा अपने व्यक्तित्व और
वाक शक्ति के बल पर, चरित्र और ईमानदारी के बल पर चुनाव लड़ते रहे। तो इस तरह के व्यक्ति को कुलपति महोदय ने डीन भी बनाया, वो भी स्वागत की बात है। हमारे सामने में बैठे हुए व्यक्तियों में खुशी की बात है कि आज मिथिलांचल में शिक्षा की धारा, सारस्वत साधना और शिक्षा की क्रांति जिस परिवार ने ला दिया, अपना अपार धन लगा दिया, उस परिवार के चंद्रधारी बाबू के संतति, चंद्रधारी बाबू के परिवार के वर्तमान उत्तराधिकारी रामकृष्ण कॉलेज मधुबनी में पॉलिटिकल साइंस के टीचर, बल्कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जिन्होंने कई कृतियां की है अपने ट्रस्ट के, चंद्रधारी बाबू के नाम के ट्रस्ट के माध्यम से। हमें याद है कि वहां हमने सुना था मिथिला के अपूर्व कवि वगैरह का सम्मेलन भी उन्होंने किया था। एक की प्रतिमा को यहाँ लाइब्रेरी के सामने लगी हुई है बाबा की, तो वहां उन्होंने उनको बुलाया था। चंद्रधारी बाबू यहाँ उपस्थित है। मैं उस परिवार को नमन करता हूँ, चंद्रधारी बाबू को श्रद्धांजलि देता हूँ और चाहता हूँ वो परिवार इसी प्रकार ज्ञान की रोशनी अपने धन से, अपनी संपदा से मिथिलांचल में फैलाता रहे। गीता भवन उन्होंने ही दिया था, चंद्रधारी कॉलेज उन्होंने ही दिया था दरभंगा को, बहुत कुछ उन्होंने ही किया। तो चाहे सेट कॉलेज हो, उन्हीं के परिवार का, जेएल कॉलेज मधुबनी हो, उन्हीं के परिवार का हर्षपति सिंह कॉलेज मधेपुर हो, और उन्हीं के परिवार का बहुत कुछ है जिस पर मैं आज मिथिला गौरव करता है। हमारे बीच एचओडी पॉलिटिकल साइंस, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स पर शानदार एक सेमिनार नहीं कहेंगे, वर्कशॉप किया था, बहुत शानदार नाम हुआ, भारतवर्ष भर में उस सेमिनार का नाम हुआ। डॉक्टर झा को मैं शुभकामना भी देता हूं उनकी उपस्थिति का, जय कुमार झा जी को, उनकी उपस्थिति को मैं सार्वजनिक मानता हूं इस सेमिनार में भी। मुकेश निराला वैसे तो गेस्ट टीचर है, लेकिन सिर्फ गेस्ट टीचर नहीं है, एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, एक राजनीतिक हस्ती भी है, और मिथिला के कौज के लिए सदा तत्पर रहने वाले युवक में से हैं। इसीलिए मैं उनकी उपस्थिति से भी प्रसन्न हो रहा हूं, प्रसन्नता महसूस करता हूं। डॉक्टर ए बच्चन अंग्रेजी के हेड, साइंस ह्यूमैनिटीज अंग्रेजी के हेड रह चुके हैं, और अभी भी अंग्रेजी के प्रख्यात विद्वानों में, सिंडिकेट के मेंबरों में उनके योगदान की चर्चा हुआ करती है। उनकी भी उपस्थिति से मैं प्रसन्नता महसूस करता हूं। पुष्पम नारायण जी के बारे में तो मैंने पहले कहा, वो एक बुनियाद है। म्यूजिक के साथ ड्रामा को उनके नेतृत्व में जोड़ा गया, और मिथिला विश्वविद्यालय के जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं उसमें वो एक हस्ताक्षर है, और मैं उनको पाकर बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष के रूप में मैं खुशी व्यक्त करता हूँ। ये एक विजय है पॉलिटिकल साइंस के। वो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर है, मुझे गौरव है, कभी वो मेरे भी छात्र थे। और आज की सभा में डॉक्टर नंदलाल शास्त्री हैं, जिन्होंने शेड्यूल कास्ट के हैं, एमएलएसएम कॉलेज में है। मेरे अभी दूसरा पीएचडी उन्हीं का था। उन्होंने सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट पर वर्क किया था, और ये लिखने का उन्होंने साहस किया था। जैसे जितेंद्र जी ने कम्युनल राइट्स ऑफ इंडिया में कई साहसिक बातें लिखी, वैसे नंदलाल शास्त्री जी ने यह लिखा जिसके बारे में गांधी जी का मत है। गांधी जी की समझ उन्होंने लिखा, शेड्यूल कास्ट में जिस परिवार को एक बार एससी एसटी का आरक्षण मिल गया, उसे दूसरी बार आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए, ये उन्होंने लिखा। रेशनलाइज कीजिए आरक्षण को, यह लिखने का साहस वो पासवान है।
उन्होंने खुद किया, आज देश में उसकी चर्चा चल रही है। और अभी जो आयोग दिल्ली में बना है वो आयोग उसी की तहकीकात में लगा हुआ है, उसकी अनुशंसा आ रही है। नंदलाल शास्त्री भी मेरे सामने है। और मैं ये कहना चाहूंगा, भाषण के क्रम में आज मैं देख रहा था कि जब बच्चियां गीत गा रही थी विश्वविद्यालय की, तो डॉक्टर पाठक जो उस गीत के रचनाकार हैं, कुल गीत वही उन्हीं की लिखी, कई प्रतियोगिता में से चुना गया था। तो मैं उनके वो ध्यान दे रहा था, तो कुलपति महोदय को मैंने कहा भी, एक काल परिचित हुए उस गीत को सुन रहे थे। मैं समझता हूं कि उनके चेहरे पर जो मंद अस्मित मुस्कान आया, मैं समझता हूं कि वे भीतर ही भीतर खुश रहे होंगे कि जो भावना हमारी थी, जो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में था, उसको पुष्पम ने अपने टीम के माध्यम से उतरवा दिया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई। मैं विषय के बारे में भी थोड़ा सा मैं कहूंगा। ये विषय 9 पर्सपेक्टिव्स, परिप्रेक्ष्य इसमें चुने गए हैं विचार के लिए। मैं बोलूंगा नहीं उस पर। 9 परिप्रेक्ष्य चुने गए हैं, क्योंकि समय की सीमा मुझे भी बताया गया है कि 1 बजे तक समाप्त करना है। मुख्य सचिव, मुख्य अतिथि महोदय के भाषण सहित, तो मेरे लिए अब 4-5 मिनट, उस 4-5 मिनट में मैं बोलूं। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा उन्हें, जिन्होंने विषय की रचना की। मुनेश्वर यादव जी ने पूरी की 9 विषय इसमें चुने गए, 9 पर्सपेक्टिव्स, 9 विषय हैं। और सभी 9 विषय को लगभग हमारे बीज भाषण दाता, की नोट एड्रेस करता रासबिहारी बाबू ने छूने की चेष्टा की है। और जो थोड़ा सा बच गया तो गोपी रमन जी ने उसको पूरा कर दिया, पूरा भाषण दे दिया। इसीलिए उसके बारे में मैं दोहराऊंगा नहीं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, जितेंद्र जी ने और विभाग के पूरी जोड़ी ने स्तुत्य काम किया है इस विषय को चुनकर। क्यों? मुश्ताक साहब ने बता दिया, जब बाजार में किसी चीज की किल्लत हो और वो चीज पहुंचे तो उस चीज का बड़ा महत्व है। तो किल्लत है उन मूल्यों की जिसे हम गांधीवाद कहते हैं, मुश्ताक साहब ने बता दिया। और उसको लेके आप हाजिर हैं, प्रस्तुत हैं, तो ये तो प्रशंसनीय बात है। ये सारे 9 पर्सपेक्टिव्स पर जब विद्वान विचार करेंगे तो बहुत बातें खुलेंगी, सामने आएंगी। वैसे मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, बिहार में अनिल कुमार ढाल यहाँ बैठे हैं, अखिल भारतीय गांधी के नाम पर एक संस्था चलती है। उस संस्था के वे अध्यक्ष रह चुके, महामंत्री रह चुके हैं। और 2012-13 में उन्होंने दरभंगा में 1 से 3 दिसंबर 2012 को एनुअल कॉन्फ्रेंस उन्होंने ISG का किया था, उसमें मैं भी शामिल हुआ था। पूरे देश से 300 डेलीगेट शामिल हुए थे। पत्रिका उसकी निकली थी। बहुत सारे विषय जो इस 9 विषय आपने दिए हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स को उसमें एड्रेस किया गया। जो चाहेंगे, अनिल बाबू की संभावना से विभाग में कई प्रतियां होंगी उस पत्रिका की, उस किताब की, जो चाहेंगे लेकर आज से कल तक उसकी तैयारी कर सकते हैं। ऐसी मेरी अनुशंसा है। ले, और अनिल जी से आग्रह है कि जो मांगे उनको सहायता देते हैं। ये वैसे एक प्रति मेरे पास भी है, हमसे भी कोई मांगेंगे तो मैं भी दूंगा 2 दिन के लिए देखने के लिए। अब गांधी जी का जो दर्शन है, याद में दिलाना चाहूंगा, बिहार में जिस चंपारण की चर्चा रासबिहारी बाबू ने की है,
हमारे अग्रज ने की है। वो बिहार की सरकार ने 2017 में बड़े पैमाने पर, एक ऐसे पैमाने पर जो ग्लोबल रिकॉग्निशन उसका हुआ, पूरी दुनिया से अराउंड द वर्ल्ड उसमें गांधीवादी सम्मिलित हुए, जो जीवित फ्रीडम फाइटर हैं सब के सब सम्मिलित हुए, जो नहीं आने योग्य थे उनके परिवार के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, सबको झोला बैग चरखा बिहार की सरकार की ओर से दिया गया, वो दूर दूर तक गए। उसी क्रम में 11 अप्रैल को हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी पटना आए थे। उन्होंने गांधीवाद पर बृहद भाषण भी दिया था। भाषण के कुछ अंश इस पत्रिका में भी है और लोगों ने यहाँ चर्चा भी की है। उन्होंने उसके बाद उस भित्ति चित्र को देखना चाहा जो गांधी जी के जीवन से संबंधित थे, उन मूर्तियों को देखना चाहा, और जो बिहार में अभी बिहार संग्रहालय एक बड़ा है बेली रोड पर, उसमें जाकर स्वयं प्रधानमंत्री ने देखा और बिहार की सराहना। अपने भाषण में प्रधानमंत्री महोदय ने जो कहा उसको बहुत प्रसन्नता है कि मेरे जितेंद्र और मनुष्य जी, घनश्याम जी, वर्मा जी, सब लोग मिलकर उसको दोहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी जी के विचार को घर घर तक पहुंचाने की दिशा में कारगर पहल की जरूरत है। पूरे देश में, पूरे बिहार में, हर युवा के मस्तिष्क में, हर शिक्षार्थी के मस्तिष्क में गांधीवाद को सन्निहित करना है, इन्फ्यूज करना है, उनका संचित विशेषण करना है, हर के दिमाग में उसको इन्फ्यूज करना है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। उस दिशा में हमारे विभाग ने पहल की है। मैं विभाग को धन्यवाद दूंगा, मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात के लिए। हाँ, यह भी मैं साथ में कहना चाहता हूं, थोड़ा सा आज और कल है, तो जो देहात से आते हैं उनसे मैं एक आग्रह करना चाहूंगा। पॉलिटिकल साइंटिस्ट में तो साइंटिस्ट की तरह 1.5 करोड़ परिवार में गांधी के नाम पर एक पाठ करके एक किताब मिली है। हर पाठशाला में उसको भिजवाया गया है और 1.5 करोड़ परिवार में बिहार में उसको बंटवाने का, हम अभी वर्ड कहेंगे, दावा किया गया है। परिवार में उसका पाठ होना है रोज। आपसे मेरा आग्रह होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, शहर के भी हैं, पता कीजिए कि उसका पाठ, उन पुस्तकों का पाठ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मैं आपसे आग्रह करूं। क्योंकि गांधीवाद सुनने से, करने से आखिर कुछ तो है। सियाराम करते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं। स्वयं गांधी ने कहा रघुपति का, राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। तो पाठ का उसको महत्व है। वो पाठ हो रहा है कि नहीं, ये पता कीजिए। और आप कोई किताब अगर आप ले सकिए तो कहीं किसी स्कूल से ले लीजिए। देखिए उस किताब में वो सारी बातें हैं जिन बातों के लिए विषय का निर्माण विभाग ने अभी नव परिप्रेक्ष्य का निर्माण किया। और गांधी जी के संबंध में जो बातें कही जा रही हैं, मुख्य अतिथि महोदय का बोलना तो अभी बाकी है, लेकिन इस पत्रिका में जो मैसेज इस पत्रिका में छपी है उसका एक पंक्ति गागर में सागर है गांधी जी के संबंध में। उस एक पंक्ति को मैं केवल पढ़ने की मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति चाहूंगा। उन्होंने लिखा है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग नीड which was felt for studying the ideas, thoughts and methods of Gandhi as they are more relevant today, more relevant today than ever before. मुश्ताक साहब ने भी यही कहा, ever before. Convergence of ideas, ये convergence वर्ड मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा। अविशार एक संस्कृति है, विविध वस्तुओं का मिलान,
विपरीत का मिलान, अलग तरह के लोग चीजों का मिलान कन्वर्जेंस कहलाता है। कन्वर्जेंस वर्ड इसमें यूज हुआ है। दो शब्द का मैं चर्चा करूंगा। एक शब्द जो मुनीश्वर जी के फॉर्मेट में है, प्रियम्बल जो उन्होंने विषय का दिया है, उसमें है प्राक्सिस। एक प्राक्सिस शब्द की मैं व्याख्या करना चाहूंगा, और एक कन्वर्जेंस का अर्थ तो मैंने कह दिया आपको। तो कन्वर्जेंस ऑफ आइडिया stimulates the young minds and encourages them to explore further into that area. Many experienced personalities, both from abroad and within, are going to contribute. इसके इस सेमिनार के बारे में लिखा हुआ है। तो कन्वर्जेंस ऑफ आइडिया जो है, बहुत तरह की बातें वो एक साथ लेकर चलने वाला गांधी था। लेकिन गांधी के कुछ विचार ऐसे थे जिसको अंग्रेजी में, ईसाई में कहते हैं इपिस्टल, एपिस्टल, एपिस्टल, और दूसरा शब्द उसको आजकल यूज होता है एपिथेट्स। एपिस्टल भी जैसे पैराबल हुआ, अच्छी बातों का संदेश फैलाना, गीत गाना, प्रेरणा देना, ईसाई में एपिस्टल कहलाता है। और एपिथेट्स तो हुआ जो रचना आपने की, जो सूत्र आपने बनाया। तो गांधी ने जो सूत्र बनाया उसे हर सरकारी कार्यालय में श्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने लगवाया है। उसी का निष्कर्ष है वो जो 2017 का सम्मेलन हुआ, शताब्दी समारोह, उसी का ये निष्कर्ष है। तो उसमें उन्हीं बातों को आपको रसबिहारी बाबू ने याद दिलाया है, उन्हीं बातों को मुश्ताक साहब ने आपको याद दिलाया है, उन्हीं बातों को रमन जी ने आपको याद दिलाया है। उन बातों को मैं भी दोहरा देना चाहूंगा। पॉलिटिक्स विदाउट मोरालिटी ये डेथ ट्रैप, मृत्यु का फंदा है। यदि राजनीति में नैतिकता नहीं हो तो मृत्यु का फंदा है। मृत्यु के फंदा में हम सभी लोग फंसे हैं। इसीलिए कैसे उभरे इस पर विचार प्रासंगिक है, और विचार के लिए प्रासंगिकता इसी कारण है। वेल्थ विदाउट लेबर, ये सातों कहलाते हैं सोशल सीन। ये जो एपिथेट्स है, इसका शीर्षक दिया गया है ये सामाजिक पाप है। ये सातों सामाजिक पाप है। अगर ऐसा नहीं है तो तीसरा है प्लेजर विदाउट विजडम। अगर बिना विवेक का आप आनंद भोग में लग जाते हैं, वो भी सामाजिक पाप है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, चरित्रवान नहीं है, ज्ञानी है, चरित्रवान नहीं है तो आप रावण बनिएगा, यह भी पाप है, सामाजिक पाप है। बिजनेस विदाउट इथिक्स, लागत कम, उचित से ज्यादा मुनाफा, तो उसे भी गांधी जी ने पाप कहा। बिजनेस विदाउट इथिक्स। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वो जो ओजोन लेयर की बात, पृथ्वी के समुद्र में समा जाने की बात, बांग्लादेश के ध्वस्त होने की बात तो रसबिहारी बाबू ने कही, वो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी के कारण है। कार्बन उत्सर्जन कीजिए और बहुत ही भविष्य को अपना विनाश कीजिए, ये साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी के कारण है। पूजा करते हैं लेकिन त्याग नहीं करते। तो वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस को भी गांधी जी ने यही साथ है जिसे गांधी जी ने सामाजिक पाप कहा। इसका आप ध्यान करें। एक बात का ध्यान आप अवश्य करें, और गांधी जी के भारत की बात करने की तो मैं सबसे बड़े वक्ता थे, उनकी बात की कोई, उस बात पर कोई टीका टिप्पणी करने का कारण भी नहीं है, असहमति का कोई कारण भी नहीं है, लेकिन स्पष्टीकरण का अध्यक्ष के रूप में एक कारण है। वो मैं कहूंगा, वो तो ठीक है, भारत लोगों के दिमाग में था। भारत की बुनियाद सांस्कृतिक है। शकुंतला के भरत से हो या चाणक्य ने कहा ये दुनिया भर का भरण पोषण करता है, इसलिए चाणक्य के किताब में लिखा है दुनिया भर का भरण पोषण करता है आर्यावर्त, इसलिए ये भारत है। ये चाणक्य की संस्कृति। और शकुंतला के पुत्र के ऊपर में कई किताबें हैं, सबकी मान्यता यही है। उसे 565 देसी रियासत को इंडिया में मिलाकर, नेटिव स्टेट्स को मिलाकर सरदार पटेल ने देश बनाया।
और संविधान, वर्तमान संविधान की धारा 1 में 2 शब्द का प्रयोग है। इंडिया, आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है वहां भारत शब्द आ गया, भारत शब्द आया है वहां। लेकिन इस इंडिया दैट इज भारत में आप समझ करेंगे, मैं तीसरी बार नीतीश कुमार का नाम ले रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं 89 से लेकर 2005 के बीच लोकसभा में जितने भाषण है नीतीश कुमार के, उसमें 57 जगह इंडिया दैट इज भारत को लेकर उन्होंने महात्मा गांधी का नाम, राम मनोहर लोहिया का नाम उन्होंने दिया और कहा कि ये दोनों नाम एक साथ लेकर गांधी के आत्मा को चोट पहुंचाया गया है। क्योंकि गांधी ने कहा था भारत, भारत ही वो चाहते थे। किससे इंडिया जोड़ा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह जो धरती है हिमालय से कन्याकुमारी वाली जिसको भारत कहते हैं, वो सिर्फ भारत नहीं है। भारत का शहर इंडिया है, भारत का गांव भारत है, गांव ही भारत है। और दोनों में 2 दुनिया है, वो पिछड़ा हुआ भारत है, ये एडवांस भारत है, ब्रिटिश इंडिया वाला भारत है। दोनों के बीच के अंतर को अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, वाजपेयी जी ने उन्हें राष्ट्रपति बनवाया था। अब्दुल कलाम जी ने कहा भारत की चिंता करो, इंडिया को विकसित है, भारत की चिंता करो, इंडिया को विकसित है। और क्या चिंता करो, तो उन्होंने कहा शहरी सुविधाएं गांव में पहुंचाइए, फैसिलिटीज ऑफ अर्बन फैसिलिटीज फॉर रूरल एरिया, ये उनका एक फॉर्मूला बना। नीतीश कुमार जी ने अपने 7 निश्चय के द्वारा बिहार के गांव में उन सुविधाओं को पहुंचाने की पहल की है और पहुंच भी गया है। कुछ भ्रष्टाचार भी है, कुछ विसंगतियां भी है। हमारे ऑल इंडिया रेडियो के पत्रकार महोदय ने जब गांव की चिट्ठी और न्यूज दिया है जगह जगह, तो मणिकांत जी ने 2-4 विवरण दिए हैं, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कुछ विसंगतियां हैं, उसका निराकरण भी अब हो रहा और वो होगा। तो गांधी का जो भारत था वो सचमुच ब्रिटेन के इंडिया के बराबरी में लाने की दिशा में बिहार का पहल है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, उनमें आर्थिक अर्थशास्त्र के कोई विद्वान इसमें भाग लेंगे तो वे बताएंगे किस प्रकार एडम स्मिथ से लेकर, मार्शल से लेकर, कार्ल मार्क्स और एंजल से लेकर, लॉर्ड केन्स से लेकर, गुन्नार मिडल से लेकर, किस तरह से विद्वानों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विवेचना की और किस तरह गांधी जी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और किस तरह उन्होंने सहकारी खेती की बात की, किस तरह से ग्राम व्यवस्था को उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने की बात की। मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप सभी के सभी हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी के सभी लगभग सबके सब PhD साइंटिस्ट हो गए, आपने रिसर्च किया। आपसे मैं अनुरोध करूंगा अध्यक्ष के रूप में, आज गांधी जी की सबसे बड़ी सच्चाई जो भारत में लागू नहीं हुई, यद्यपि संविधान निर्माण सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन गांधी जी के ही पहल पर, सरदार पटेल के अनुरोध पर और गांधी जी के पहल पर बाबा साहब अम्बेडकर बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई शिकायत हमको नहीं है, लेकिन वो चाहते थे कि फर्राट अंग्रेजी और कनाडा का जिसने संविधान बनाया है वर्जिनी ने, उसको वो चाहते थे कि भारत के संविधान को लिखे। सरदार पटेल ने इसका विरोध किया, कैबिनेट में कहा रुकिए, बापू से बात करने दीजिए, ऐसा स्वदेशी संविधान होगा। बापू को उन्होंने जाकर शिकायत की और फिर बापू ने बाबा साहब अम्बेडकर को मनाया। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय संविधान निर्माण सभा के सदस्य नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं कैसे बनूंगा ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। तो संविधान निर्माण सभा में जहां से आया था वो जगह चला गया बांग्लादेश में, इस पाकिस्तान में। तो फिर उनको सरदार पटेल जी ने अपने एक शिष्य से बम्बई में त्याग पत्र गिरवाया
और त्यागपत्र दिलाकर कांग्रेसी त्यागपत्र दिलाकर बाबा साहब को वहां से जिता कर लाया गया और वे बने। फिर भी इंडिया रह गया, चूंकि जवाहरलाल जी पर भी और बाबा साहब पर भी इससे कोई फर्क नहीं उनको नजर आया। उन्होंने कहा कि इंडिया है अभी, उसको हम कह रहे हैं कि भारत, इंडिया जो है वो भारत है, कोई बुरा नहीं लगा उनको। नीतीश जी ने संविधान पार्लियामेंट में और इसकी प्रशंसा बहुत हुई है, तो नीतीश जी ने दोनों का डिसेक्शन किया, दोनों का क्लासिफिकेशन किया, बहुत प्रशंसा इसकी हुई। तो इस तरह भारत का संविधान बना। गांधी जी को आपसे साहस की बात मैंने इसलिए की कि एक चीज जो बहुत बड़ा सच है, गांधी जी ने को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं था। गांधी जी संसदीय प्रजातंत्र के एकदम खिलाफ थे, एकदम खिलाफ। उन्होंने कुछ कड़े शब्दों का भी प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को उन्होंने अब क्या कहें, प्रोस्टिट्यूट वर्ड का हिंदी क्या बोलेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। क्यों कहा ऐसा, इस पर बहुत लिखा गया है। गांधी जी तो चाहते थे बुनियाद होनी चाहिए ग्राम पंचायत से, ग्राम राज्य की बुनियाद होगी ग्राम पंचायत से। जिस किताब को अभी मुश्ताक साहब ने पढ़ा है, उस किताब को हमने नेक से थोड़ा देखा है। हिंद स्वराज को, हिंद स्वराज तो कुछ भी नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर बताता है कि स्वदेश का स्ट्रक्चर क्या होगा। उसकी बुनियाद नीचे है। दलित भारत का आदमी वो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े नेता, बाद में ग्राम सेवा में लग गए, राजनीति को उन्होंने त्याग दिया और गांव में जाकर बस गए, समाज सेवा में लग गए। जितेंद्र जी, नानाजी देशमुख का नाम मैं उनके मुंह से सुनना चाहता था, गांधीवादी नानाजी देशमुख। और एक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसने आज मंच से दहाड़ा है गांधी के नाम पर, स्वयं जितेंद्र नारायण है, ये भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। और गांधी जी के बारे में अब जो उनकी धारणा है, इतनी अच्छी धारणा पहले उनको नहीं थी। और ये मैं सच्चाई आपको बताना चाहता हूं। डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा हिस्ट्री के विद्वान हैं, उनका एक लेक्चर गांधी जी पर उन्होंने सुना और उन्होंने एक सलाह दी इनको कि आप बाय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य का प्रयोग जो गांधी जी की आत्मकथा है उसको आप पढ़िए। पढ़े, पढ़ने के बाद इन्होंने फिर हमसे भी चर्चा की, विचार किया और इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन में भी गांधी जी के प्रति सम्मान पैदा किया। और आज गांधीवादी समाजवाद कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग। उसमें जिन व्यक्तियों का योगदान है उसमें से एक हमारे जितेंद्र भी हैं। या गांधीवादी समाजवाद की चर्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी करता है। इन बातों को कहने की जरूरत मुझे महसूस हुई। मैं तैयार करके लाया था अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा क्रम, जिस क्रम में भारत के लिए मोस्ट सुटेबल है गांधीवादी अर्थशास्त्र, आत्मनिर्भर समाज कैसे बनेगा हुआ। लेकिन मैं उसको अब नहीं कहूंगा, बहुत समय मैंने ले लिया। आपने शांतिपूर्वक मुझे सुना, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। विभाग ने मुझे आमंत्रित किया, अध्यक्षता के लिए नहीं, क्योंकि अध्यक्षता तो उचित था तो कुलपति महोदय ही करते और वही कर भी रहे हैं, या फिर जितेंद्र नारायण हेड के रूप में करते या सोशल साइंस के डीन करते। मुझे तो आपने आदर दिया अध्यक्षता का भार देकर, मैं आपके प्रति आभारी हूँ, सबके प्रति आभारी हूँ। सभी तो मेरे मित्र और भाई की तरह हैं, सबके अधिकांश चेहरा को मैं पहचानता हूँ। सभा के प्रति शुभकामना के साथ आप सच्चे गांधीवादी बने, मैं भी सच्चा बनने की कोशिश करूंगा। अभी तो नहीं हूँ। आप सबों का आपके भाषण को मैं समाप्त करता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। सर, हृदय से आभार। और अध्यक्ष से उद्बोधन पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अब मुख्य अतिथि ललित नारायण विश्वविद्यालय के जस्ट कुलपति महोदय
सबसे अनुरोध है कि मंच पर आकर अपना उद्बोधन दें। मंच पर उपस्थित सम्मानित विद्वान, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति आदरणीय प्रोफेसर राजकीय शासन साहब, अभी जिसका उद्बोधन हम सब ने सुना, आज बिहार की शिक्षा, विशेष रूप से उच्चतर शिक्षा की जो संस्थापक कह सकते हैं आज की तारीख में, रूसा के वाइस चेयरमैन आदरणीय सम्मानित विद्वान कामेश्वर साहब, मंच पर मौजूद विभाग अध्यक्ष जितेंद्र नारायण जी, विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, डीन गोपी प्रसाद जी, और इसको संचालित कर रहे प्रोफेसर मुनीश्वर यादव जी, टीम के दूसरे सदस्य, विभाग के दूसरे प्रोफेसर राय साहब, और सम्मानित विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित डीन जो यहाँ पर उपस्थित हैं। आज डीन हमारे 4 डीन उपस्थित हैं। ह्यूमैनिटीज के अलावा सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज की डीन स्टूडेंट वेलफेयर, डीन म्यूजिक, सभी विभागाध्यक्ष। इसके अतिरिक्त 2-3 विशिष्ट विद्वान जो इस विश्वविद्यालय के रीढ़ की हड्डी या इसके धरातल से जुड़े हुए हैं, इन्होंने कुल गीत को बनाया जिसका गायन विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा है, विश्वविद्यालय का मान है, विश्वविद्यालय के सम्मान को बढ़ाता है, उसकी गरिमा को समेटता है। ऐसे कुल गीत के रचयिता प्रभाकर पाठक जी, मिथिला की परंपरा में कॉलेज को स्थापित करने वाले। मिथिला की परंपरा दान की परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है। इसके अतिरिक्त और परंपरा स्वागत सत्कार की जो है वो है, लेकिन ज्ञान और ज्ञान की जो प्रक्रिया है, जो परंपरा है, उस परंपरा को चलाने वाले उस परिवार से सच्चुत जी यहाँ पर मौजूद है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान गुरु जी ने संबोधित करता हूँ, मीडिया के सभी साथी, सभी प्राध्यापक साथी, विद्यार्थी और इसमें शामिल होने वाले सभी कहने से कुछ नहीं होता, कहते हैं कहने से कुछ नहीं होता, और ये भी कहते हैं बिना कहे। गांधी कुछ इसी तरह की परंपरा के संत। अपनी बात को 2 टुकड़े में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहला पार्ट होगा सराहना के लिए नहीं है, सराहना अनुकरण के लिए है, सीखने के लिए है, समझने के लिए है, और आगे उस परंपरा को बढ़ाने के लिए है। आज के विषय राजनीति शास्त्र मिथिला विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष ने उनके सहयोग में दिया चर्चा करने का वो मार्गदर्शन, वो वक्तव्य नहीं है, केवल मार्गदर्शन, एक रास्ता दिखाने का पथ प्रशस्त करने का एक रास्ता है। क्योंकि ये प्रश्न आदि काल से चले आ रहे हैं, और ये प्रश्न युधिष्ठिर से भी किया था यक्ष ने कि मार्ग क्या है, रास्ता क्या है। बहुत सारे प्रश्न थे, उनमें से ये भी। आज भी मार्ग वही करके भी नहीं, कितनी भी कोशिश करें, और अगर भूलते हैं तो भटकते हैं, इसलिए फिर लौट करके उसे भूलने की प्रक्रिया में आए। एक बार इस चर्चा में मैंने कहा कि समाज के अंदर ऑटो करेक्शन लगा, हम कुछ बोलते हैं, भटकते हैं, और फिर आ जाते हैं उसे बिंदु पर घूम करके उस व्यवस्था के साथ, उस दर्शन के साथ है। तो दर्शन नहीं समाप्त होगा, सृष्टि रहेगी, सबकी दर्शन नहीं समाप्त। तो दर्शन गांधी व्यक्तित्व है, और उस व्यक्तित्व का निर्माण और सृजन भारत की भूमि से हुआ है, भारत की उस ज्ञान परंपरा से हुआ है, भारत की उस शोध परंपरा से हुआ है, भारत की उस कर्म परंपरा से।
मैंने ये क्रम बदला अपनी बात कहने का, बात रह गई थी अभी याद आया। अध्यक्ष जी से अनुरोध करके पहले अध्यक्ष को हमने आमंत्रित कराया और कुछ इसका एक विशिष्ट कारण ये था कि फिर मैं उलझन में रहता। अगर मैं पहले बोलता तो मैं शायद चला नहीं जाता, आपके साथ रुकता नहीं और अध्यक्ष जी को सुनने का एक मौका खो देता। इसलिए मैंने ये दृष्टा की इसी बहाने में कुछ काम कंपल्सन में होते हैं और कुछ काम स्वेच्छा से। तो मेरे ऊपर जैसे अभी आप बैठे हुए सभी व्यवहारिक दर्शन है। एक टीचर का इंतजार जब स्टूडेंट करता है, 8 बजे की उसकी क्लास है और 50 बच्चों को अगर इंतजार करना है तो 100 आंखें उसी का इंतजार करें। वो कितने मिनट लेट आया या कितने मिनट पहले आया तो क्या पहने हुए कैसा है, चेहरे पर उसकी प्रसन्नता है या कोई कष्ट है, क्या है क्या नहीं है, ये 100 आंखें उसी और उसी को देखती हैं और थोड़ी देर नहीं देखती है, इंतजार करती है और फिर क्लास में उसको लगातार देखती है। ये दर्शन है, सत्य है और यानी आकलन 50 की क्लास में 100 आकलन। और वो अगर विभागाध्यक्ष हुआ तो उस क्लास के अलावा जो 4 क्लास और हैं वो भी उसी पर फोकस रहे। वो डीन हुआ तो पूरी फैकल्टी फोकस है और अगर वो कुलपति हुआ तो विश्वविद्यालय तो देखेगा ही देखेगा, पूरा शहर, पूरा समाज, पूरा समुदाय दुगनी संख्या की आंखों से देख रहे हैं। अगर 4 लाख की स्टूडेंट संख्या मिथिला विश्वविद्यालय की है तो मैं 8 लाख आंखों की रडार करती हूँ। और 8 लाख आंखें नहीं, ये जो मीडिया के साथी हैं ये कहां तक इसको पहुंचा देंगे, कितनी लाख आंखों की रडार पर मैं हूं और कितने चिंतन का विषय हूं। तो देखने भर से हम नहीं संतोष करते, फिर हम चर्चा भी करेंगे, परिचर्चा भी करेंगे, हास भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे और उपहास भी करेंगे, तो छोड़ेंगे नहीं। सब टीचर का नाम होता है, उपनाम होता है, मेरा भी कुछ रहा होगा और आज भी नाम कुछ रखा होगा। कोई ऐसा आप अपने विद्यार्थी काल को याद करेंगे तो सबका नाम है। तो ये चर्चा परिचर्चा, हास उपहास प्रयास सब एक साथ लग करके उसके होते हैं, ये विषय चलता है। गांधी ने इसको पहचाना, ये ऑटो करेक्शन है। अगर एक टीचर 50 का शिक्षक सचेत हो गया, ये 100 आंखें मेरा ही इंतजार और मेरा ही सब कुछ दीदार करना चाहती हैं, इससे वो वाकिफ हुआ, संज्ञेय में हुआ, उसने इसको नोटिस किया, तो उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका लेक्चर कुछ हो। ठीक है बोलिए, बिल्कुल। और अगर उसने नोटिस नहीं किया तो उसका कुछ और। कुलपति का भी यही होगा कि अगर हमने ये नोटिस किया कि हमें ये 8 लाख आंखें और मीडिया के साथियों की दया दुआ और कृपा से, उनके प्रयास से, उनके सद्भाव से 1 करोड़ आंखें देख रही हैं और मेरे बारे में वो मंथन चिंतन कर रही हैं, तो मेरा आचरण, मेरी कार्यशैली, मेरी कार्य पद्धति कुछ हो। और दूसरा, ये तो मैंने रिफ्लेक्ट किया, और अगर मैं रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं गांधी पे, अगर मैं लीड करना चाहता हूं, रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं मैं कुलपति हूं, और एहसास कीजिए मैं टीचर हूं, एहसास कीजिए, तो विषय का ज्ञान देना होगा, पहचान बतानी होगी, और विषय का ज्ञान देने के लिए कम्युनिकेशन के लेवल पर उतरना होगा, एसोसिएशन के लेवल पर उतरना होगा,
जो कन्वर्जेंस का लेवल है उस लेवल पर उतरना है। तो गांधी ने आधी धोती पहन करके एक मीटिंग में खाना केवल खा करके बकरी जैसे निरीह जानवर के साथ रह करके यही संदेश दे कि मैं आपके साथ हूं, यानी आप हमें देखिए और मैं आपके साथ हूं, ये संदेश है। और अंत में एक छोटी बात, क्योंकि अंतिम वक्ता को कोई सुनता नहीं मैंने इसलिए भी वो प्रण छोड़ा। अंतिम वक्ता तक सब कुछ थक जाता है और आदमी सोचता है जितनी जल्दी वाइंड अप हो जाए सीताराम को, अंतिम वक्ता तक धैर्य जवाब हो जाए। तो इसलिए मैंने अंतिम क्रम अपने हिस्से में लिया, यानी लास्ट बैटिंग ऑर्डर हमने चेंज किया। लास्ट बैटिंग ऑर्डर हमेशा से चेंज करते। मैं तो बैठा रहूंगा, आप इस तरह बोलते रहे तो मैं बैठा रहूंगा। मैं आपको एक कभी ताली मैंने नहीं बजाई किसी के भाषण में, मेरे हाथ उठ गए, ऐसे ही हुआ बहुत धीरे। मैंने आप धन्यवाद ऐसे तारीफ कर रहे हैं तो मुझे वो रिफ्लेक्शन मिल रहा है, वही तो मैं करता हूँ, वो रिफ्लेक्शन मुझे मिल रहा है। मेरी आंखें दे रही हैं आपको, वो रिफ्लेक्शन मिल रहा है और मैं उससे एसिमिलेट होने की पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जीवन से समझ, क्योंकि सच क्या है, बड़ा कठिन दायित्व है कुलपति के रूप में, और ये प्रशासनिक दायित्व बहुत वर्षों से मेरे साथ चल रहा है। चल क्या रहा स्वीकार कर रहा हूँ आनंद ले रहा हूँ, अच्छा। लेकिन इस दायित्व के साथ ये वाला दायित्व जो आपसे आज मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये मुझे ज्यादा प्यारा है। किसी कुलपति का आकलन वो बहुत अच्छा टीचर है इस ग्रुप में शायद कभी होता हो, वो कितना पेंशन का फाइल कर दिया, कितना अंत्योदय कर दिया, कितना इसको कर दिया, कितना उसको कर दिया, कितना फंड रिलीज कर दिया, कितना मकान बोलते हैं, कितना क्लासरूम बनवा दिया, तो मकान बनवा दिया, मतलब इस पर उसका आकलन। कुलपति का एक दायित्व तो विश्वविद्यालय का इंजीनियर कर डालेगा, जो सेक्शन अफसर है बड़ा वो कर डालेगा, रूल तो सरकार के हैं, करना रूल में, ये रूल में नहीं करेगा जेल जाएगा, तो करेगा तो रूल में ही, पैसा मिलेगा तभी रूल में करेगा, नहीं लगा तभी रूल में करेगा, रूल तोड़ करके कुछ नहीं करेगा, रूल तोड़ के करेगा तो कहीं और जाएगा। लेकिन आकलन कुलपति ने कितनी फाइलों का निस्तारण किया, रिव्यू पेंडिंग है कि नहीं है इस पर होता है, उसने कितना अच्छा एकेडमिक माहौल दिया, उसका सृजन कितना अच्छा किया, क्योंकि अकेले पढ़ाना एक बात और सबसे उस माहौल में डाल करके काम करा लेना बड़ी बात। मेरा जो दायित्व बनता है वो दूसरा होता है। मैं एक क्लास बहुत अच्छे से पढ़ा दूं अपनी, मुझे पढ़ाना आज भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे से कितना काम करवा लेता हूँ, क्योंकि फिर वो क्षमता कई गुना बढ़ रही है। विश्वविद्यालय में 810 या 1000 टीचर हैं, 1000 टीचर अगर एक साथ पढ़ाते हैं तो एक अलग ग्रेजुएशन, 1000 टीचर 4 लाख विद्यार्थियों को एक ज्ञान देते हैं, कोई एक अलग ग्रेजुएशन, उसकी मैथमेटिक्स, उसका न्यूमेरिकल मल्टीप्लिकेशन में कहीं तक। मैं अंतिम बात समाप्त करना चाहूंगा गांधी कि जो भारतीय दर्शन है गांधी वहां से निकलते गांधी अफ्रीका से नहीं पैदा हुए, गांधी ने अफ्रीका के आंदोलन से गांधी का जन्म नहीं हुआ, ये उसका एक परसेप्शन मिसकंसेप्शन। गांधी भारतीय दर्शन को अफ्रीका ले गए, भारत की परंपरा को अफ्रीका ले गए, वहां से कुछ सीख करके यहाँ नहीं आया, अब तक क्लास में यही पढ़ाया जाता है। उन्होंने वहां सीखा था और वो लाकर के यहाँ प्रयोग किया और उनके खिलाफ कोई आंदोलन हुआ, वो खड़े हो गए उसके और गांधी पैदा हो गए। ये गांधी की पैदाइश नहीं, गांधी तो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति है। पूरा जो भारतीय दर्शन है, तत्व है और भारत की मीमांसा है, तो 3 बातों की मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। नंबर एक परंपरा आपकी नहीं है, हमारी नहीं है, कि हमारे पास ऋषि, मुनि और कर्म, ये 3 तत्व हमारे साथ हैं। इनका सरलीकरण करना चाहेंगे तो
एक परंपरा तो ज्ञान की परंपरा नहीं है, जो एक्नॉलेज करने की परंपरा नहीं है, नोटिस करने की परंपरा नहीं है। क्या आप एक्नॉलेज कीजिए, नोटिस कीजिए, कुछ और नहीं करना, देखिए करना, नोटिस कीजिए। और इससे ऊपर एक परिकल्पना और थी कि अगर आप और श्रेष्ठता की तरफ जाना चाहते हैं, एक पादान श्रेष्ठता की ओर चढ़ना चाहते हैं, तो नोटिस करने के साथ खुशी कीजिए, अनुभव कीजिए, उसके साथ संवेदना है। और संवेदना के बाद जो अंतिम पड़ाव पार्टी दर्शन का, वो उसके साथ जुड़ी, उसका साक्षी बनिए, उसके साथ काम में आइए, उसके साथ यानी एक्शन पार्ट में आइए, क्रिया के रूप। ये जो ऋषि मुनि और गीता की परंपरा है, यही की परंपरा। या उन वेद वाक्यों को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, उनका अर्थ निकालिए, और निकालने के बाद दूसरी परंपरा, उसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, मीमांसा। मनन, चिंतन, मीमांसा ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं। उस नॉलेज को, जो नॉलेज आपने एक्वायर किया है, नॉलेज ही रहेगा तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा, उसका फल नहीं आएगा, वो फ्यूटाइल होगा। उस नॉलेज को मीमांसा में लाइए कि क्या क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जिसको ट्रांसफर करना चाहते हैं वो क्या एक्सेप्ट कर सकता है, ये मोटिव उसके साथ। पूरा नहीं एक्सेप्ट करेगा, किस लेवल का आदमी है, क्या चीज चाहिए उसको, क्या एक्सेप्ट कर सकता, वो ट्रांसफर रहेगी, उसकी मीमांसा। और ट्रांसफर के बाद एक फॉलो प्रोग्राम है, उसमें एक्शन में, यानी जो गीता का दर्शन है। कभी कल्पना कीजिए, ऐसा साहित्य की रचना होती है जो युद्ध भूमि में होती है। गीता सामान्य साहित्य नहीं है, वो दोनों तरफ से सेनाएं सारे हथियार के साथ युद्ध की मुद्रा में लगी हुई, और उस लगने के साथ युद्ध की घोषणा भी हो गई है, नाद भी हो गया है, और फिर साहित्य की रचना हो, जहां जान बचाने को पड़ी हो, जहां लड़ाई की सारी सामग्री तैयार खड़ी हो, वहां इतने विषय साहित्य की रचना हो जो ज्ञान दे सके, एक ऐसी व्यवस्था दे सके कि भारत की यूनिवर्सिटी कहीं और की बात नहीं। ये चीजें इसी का ट्रांसफॉर्मेशन है, गांधी तीनों का ट्रांसफॉर्मेशन, जो ज्ञान का भी है, ऋषि का भी है, योग का भी है, और गीता का भी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन समाज का ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटो करेक्शन की सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हमेशा जीवंत रहेगा। कभी इसकी ना उम्र की कोई सीमा होगी, कभी छोटा होगा, बड़ा होगा, युवा होगा, तो उसी भाव में अनवरत चलता रहेगा। जिस भाव में ये मैं समझता हूँ, आज एक मौका मुझे मिला पाठक साहब जैसे व्यक्तित्व के सामने चर्चा करने का, जो पितामह है इस विश्वविद्यालय इस मामले में, जो गीत आपने रचा है वो कब तक चलेगा। ये सौभाग्य है, सौभाग्य विश्वविद्यालय का, क्यों आप जैसे विद्वान गीत रचते हैं, पता कर रहे हैं विश्वविद्यालय क्यों, पता कर क्यों वो गीत क्यों है, गीत है, ये एक प्रश्न है, लेकिन किसी विश्वविद्यालय का गीत क्यों है, उसका उद्घोष क्यों है। इसलिए है कि हम इसके गौरव गाथा को कभी भूलने की कोशिश नहीं करें, उससे नीचे उतरने की, जिस सोच के साथ, जिस विद्वता के साथ, जिस भाव के साथ इस गीत को लिखा आदरणीय पाठक साहब ने, वो गौरव गाथा हमें इसकी रिलेवेंस, हमें इसका इतिहास, हमें इसकी सारी मर्यादा कभी विचलित ना होने दे, और अगर भटकेंगे तो ऑटो करेक्शन के मोड में इन्हीं शब्दों के साथ मुझे ये मौका देने के लिए, बातों को सबसे अंतिम वक्ता के रूप में सुनने के लिए मैंने अपने आप चुना, सुनने के लिए, एक सुखद अनुभव देने के लिए, जो आपको बात करके जीवन का एक संदेश देने के लिए, इन सब के लिए आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
आपको सभी मंत्रमुग्ध भाव से सुनते रहे, एकदम मंत्रमुग्ध भाव से। और मैंने सुना है मंत्रमुग्ध होकर पहली बार। इतने ध्यान से मैं नहीं सुनता हूँ किसी वक्ता को नहीं सुना। श्रद्धेय कुलपति महोदय के उद्बोधन के बाद अब कुछ बचता नहीं। हम अपने विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर मुकुल बिहारी वर्मा सर से अनुरोध करना चाहेंगे कि वह आभार के 2 शब्द या फिर धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर मुकुल बिहारी शर्मा वर्मा जी सर। धन्यवाद हमारे संगठन सचिव जिन्होंने मुझे ये गुरुतर दायित्व दिया है। तो इतने बड़े जन लोगों को मैं आभार व्यक्त कर सकूं अपने विभाग की तरफ से। सर्वप्रथम मैं अपने विभाग की तरफ से हमारे जो मुख्य अतिथि हैं लंबे प्रतिष्ठित कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह सर को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने अमूल्य क्षणों में से स्पेयर करके उस समय निकाल करके हम लोगों को दिया और हमारे पूरे कार्यक्रम में रहे। और उनको सुनने के बाद ऐसा लगा तो वो एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक प्रशासक ही नहीं है बल्कि एक अच्छे शिक्षक भी हैं। संवेदना, सृजन और अपने समुदाय की से तादाद स्थापित करने की प्रक्रिया बहुत ही सार्वगर्भित प्रबोधन था सर का। और हम लोग उससे बहुत आह्लादित हुए, इनलाइटेंड हुए और हम लोगों ने एक नई शिक्षा, नई सोच, एक दिशा, एक नया एंगल, गांधी जी को देखने का एक नया एंगल मिला। इसलिए हम अपने प्रोफेसर के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। उन्होंने शैक्षिक रूप से भी हमारा नेतृत्व किया है, मार्गदर्शन किया है। इस कड़ी में अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ प्रोफेसर कामेश्वर झा, जो कि संप्रति वाइस चेयरमैन राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल पटना से आए हैं और उन्होंने अपने व्यस्तम क्षणों में से हमारे लिए समय निकाला है। और वो जैसा कि आप पहले सुन चुके हैं वो हमारे बीच के ही है और स्नातकोत्तर राज्य विज्ञान विभाग के प्राध्यापक भी रह चुके हैं और अभी भी हम उनको पार्ट ऑफ अस ऐसा महसूस करते हैं। वो मेरे से पीएचडी सुपरवाइजर भी रह चुके हैं और उनसे मुझे लगातार मार्गदर्शन करता रहा है। उनके यहाँ आने से हम सब लोगों का मार्गदर्शन हुआ, हम लोगों का उनका ओजस्वी भाषण सुनने का मौका मिला, इसलिए हम उनके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। इस कड़ी में आगे पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, जाने वाले शिक्षाविद, बहुत ही प्रतिष्ठित एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफेसर राज बिहारी प्रसाद सिंह को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ऐसा लगा जो बहुत ही शॉर्ट नोटिस में उन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया। इसके लिए तो उनके आभारी हैं और हमको सुनने का मौका मिला। हम गौरवान्वित हुए अपने अतिथियों को पा करके, जो जिन्होंने आकर के उन लोगों को पा करके हम पूरे नहीं समा रहे हैं। इसके उपरांत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने डीन ऑफ सोशल साइंसेज संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान डॉक्टर गोपी रमन प्रसाद सिंह सर का। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी है, वो हमारी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और अभी भी उनकी शैक्षिक प्रतिबद्धता को आपने देखा। आप उनके भाषण खुद के भी पता लगा सकते हैं, लोग उसको जानते ही हैं। He has authored many books on research methodology as well as sociology. इस कड़ी में अब अपने रजिस्ट्रार साहब को, प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
उनको सुनने के बाद ऐसा लगा गांधीवाद की नब्ज उन्होंने पकड़ ली है, ऐसा महसूस होने लगा। तो उनका भी बहुत ही सार्थक भाषण था। और लगा लो गांधी को अगर समझने का प्रयास किया गया है, कुछ लोगों ने समझा है, ही इज वन ऑफ देम। तो अब उनके ग्रेटफुल है। आई एम ग्रेटफुल टू आवर रजिस्ट्रार प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सर। अब इस कड़ी में मैं चाहूंगा अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र नारायण, जिनके नेतृत्व में स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और साथ ही साथ जो हमारे मुख्य अतिथि है उनका भी हमको पूरा सहयोग मिलता रहा है। मुख्य अतिथि हमारे डीसी सर, इन दोनों के सहयोग से ये डिपार्टमेंट जो है जिन दुनी रात दुनी उन्नति कर रहा है, ये हम सब लोगों को बहुत सुकून देता है। और हमारे जितेंद्र नारायण सर वो रात दिन मेहनत की है, रात भर जगे हैं, और दिन में भी भर्ती हम लोग का मार्गदर्शन करते रहे, उनके पल पल वो चलते रहे, चिंता बनी रही, ये कार्यक्रम हमारा सफल हो, अच्छा हो। और हमारा कार्यक्रम कैसे सफल हुआ, हमारे अध्यक्ष रहे, हमारा कार्यक्रम कैसे कितना सफल हुआ, ये आकलन तो आप लोग करेंगे। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ अपने डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस, हमारे डीन फॉर्मर डीन ऑफ सोशल साइंस प्रोफेसर अनिल कुमार झा, पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी सर, जिनको मैं पहचान रहा हूँ, डॉक्टर प्रभाकर पाठक सर, जिसके बारे में कुलपति महोदय ने पूरी प्रशंसा की है, और वो हमारे विश्वविद्यालय के इतिहास गुरु बन चुके हैं, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के उन्होंने कुलगीत की रचना की है। और मैं दूर दराज से आए हुए दलसिंहसराय से आए हुए विद्यार्थी और जो ऑडियंस है, डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस एज वेल एज स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, जिन्होंने बहुत ही धैर्य से, डिसिप्लिन से, शांतिपूर्वक हम सब लोगों की बातों को सुना है और इस तरह से हमारा सहयोग किया है। कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो ऑडियंस के लिए, इसलिए ऑडियंस के कृतज्ञता है, उन्होंने हम लोगों के बात को सुना और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ साथ हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं अपने मीडिया पर्सन्स के, जो पत्रकार बंधु हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लोग आए हैं, उन लोगों का धन्यवाद हम ज्ञापन करते हैं, जो उनकी बहुत बड़ी भूमिका है समाज निर्माण में। शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए मीडिया पर्सन्स की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा कि हमारे कुलपति महोदय ने कहा है, जो वो हमारी बात करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं, और जिससे कि उसे आता है। इसलिए मीडिया पर्सन भी बहुत एक आभारी है, जो पूरी समाज सोसाइटी के खिलाफ तक हमारी बात को पहुंचाते हैं। उसके बाद मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने विभाग स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग के छात्र छात्राओं का, जिन्होंने रात दिन लग के काम किया है। काम एक्चुअली वही लोग करते हैं, हम लोग सुपर करते हैं, देखते सुनते हैं, लेकिन एक्चुअल जो काम होता है वो एक्चुअल वो लोग करते हैं। उसमें कुछ लोगों का नाम करना बहुत ही समीचीन है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो हमारे विभाग के इतर स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान की कम्युनिटी से युवा आते हैं, जैसे कि कुमार सिंह कॉलेज के डॉक्टर जयकुमार झा हैं, सीएम कॉलेज के डॉक्टर आलोक रंजन हैं, तो इन लोगों का भी हमको सहयोग मिला। हमारे विश्वविद्यालय के बाहर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के शोध छात्र विजय शंकर चौधरी, उनका भी सहयोग मिला है। और हमारे विभाग की जो शोध छात्रा है प्रिया, उनका भी सहयोग मिला है। इसके अलावा ये वन का पूरा काम साथ साथ देखना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस की पीआरबी कॉलेज समस्तीपुर में डॉक्टर सपना कुमारी, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। तो और हमारे विभाग के जो छात्रा है, सन्नी कुमार है, अविनाश कुमार है, सिद्धार्थ जी है, ये सभी जो है इन सबों ने काफी काम किया, मेहनत किया है, उनके हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। ये विभाग शुक्रगुजार रहेगा, ये उनका विभाग भी है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, मेरे बगल में खड़ा है ना, तो इनकी जो जिम्मेदारी है उसका विभाग बनना चाहिए हम लोगों से। तो इसलिए हमारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रति भी हमारे बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। थैंक यू ऑल।
राष्ट्रगान के लिए उपस्थित होंगे और हमारे बीच जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्सव जलधिकंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे सर एक घोषणा है, अभी अभी आपके लिए कुछ खाने की व्यवस्था है सर और हाँ सर मैं जानता हूँ अभी हमने वेलकम किया है डीन ऑफ सोशल साइंसेस महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी से हमारे बीच पधार चुके हैं इतनी दूरी तय करके और हमारे जो अमेरिका रसा न्यूजीलैंड तो 5 देशों से जर्मनी और इंडोनेशिया पूरे सभी देशों से जो उन्होंने संपर्क स्थापित किया डॉक्टर असद साहब वो हमारे बीच आ चुके हैं और विदेशी मेहमानों से कोऑर्डिनेशन उन्हीं का है। मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सभी के लिए भोजन तैयार है, आप कृपया भोजन करेंगे तभी जाएंगे। मुझे एक जितने वॉलंटियर्स हैं विशेषज्ञ के साथ आ जाओगे और एक फोटो ले लो, पीछे खड़े हो जाओ, थोड़ी जगह मेरे लिए भी छोड़ना। Now at my home in Berlin, here in Germany. Yes. So I'm anxious to go there sometime. I have not been for many years. So I think that it's a different city from when I was there. Yeah, it has transformed several times. That's right. Now it's really wonderful. Looking forward for spring. Right. How are vaccinations going here? Pardon? Have you gotten a COVID vaccination yet? Not yet. No. It will take some time. I'm too young. Too young. How wonderful. Just 61. That's nothing. Welcome, one and all. So we are going to start the first technical session. I request all the people please mute yourself so that there will be no disturbance in between. Thank you very much. Okay, making progress here. Please mute yourself, everybody. Welcome one and all. So we are you all are welcome in the first technical session of today. In this session we are having two distinguished professors with us, Professor Christian Bartels and Professor Lester Garg. Before starting formally, I would like to thank Professor Jiten Narayan Singh ji, President of the Organizing Committee. The other professors, I
and convener of this conference, Dr. Mukul Bihari Verma, and Joint Secretary and Treasurer for this conference, Dr. Ghanshyam Roy. I also welcome the chair of this session, Professor Rajiv Kumar, who is Dean Faculty of Social Science, and he is also having some administrative responsibilities in the Mahatma Gandhi Central University, Motihari. He is presently a registrar of the university, and he is also the director of the Center for Diaspora Studies there, and he is having more than 35 years of teaching and administrative experience. So he is chairing the session today. I welcome you, sir. And the co-chair of today is Professor Shashi Pratap Shahi. He is Principal AN College, Patna, Bihar. I hope there is no disturbance now. So with the kind permission of the chair, I want to formally invite the two distinguished professors. Sir. I request Dr. Aslam Khan, please begin the session. Thank you. Thank you very much, sir. So the first distinguished professor of this session today is Professor Christian Bartol. He is going to speak today on Gandhi, Calmbeck and practical idealism. And Professor Christian is an educational and political scientist, closely collaborating with the Free University Berlin since 1993. He is also the president of Gandhi Information Center, that is Research and Education for Non-Violence, a society of education of benefit to the public based in Berlin, Germany, and curator of more than 20 exhibitions on non-violent resistance for the Berlin Anti-War Museum on Gandhi, Tolstoy, Thoreau, Ruskin, Schweitzer, Huxley. He has extensively researched Mahatma Gandhi's correspondences with contemporaries and published several books, biographies and monographs and articles by reputed publishers like Belgrave, Sage, Routledge, on mainly Tolstoy, Gandhi and non-violent resistance. Among these several publications, the following can be highlighted that I am naming some of the publications. Tolstoy and Gandhi, that was published in 1994. Then a letter to a Hindu, that was published in 1997. So he is having very extensive, very distinguished career and a non-violent practitioner, and he is having a very close association with Mahatma Gandhi's classical works. So I invite Professor Bartol for the session. Sir, you are having 20 to 30 minutes for your presentation. So I welcome you and I invite you for that. Thank you very much. Sir, Professor Christian Bartol, please. Thank you so much for your invitation. I'm very glad that I'm able to share some thoughts. I chose the following topic for you. It is Gandhi, Kallenbach, and practical idealism. So I would like to tell you something about the reasons why I chose the topic. Because, you know, there is a very important date, the 1st of March, 1871, a great friend of Mahatma Gandhi was born. That was almost 150 years ago, you know. And that is the reason why I chose to give 2 lectures on Gandhi and Kallenbach, and because it is so important to remember these two as followers of Leo Tolstoy,
building up the Tolstoy farm, being very practical, trying to practice their ideals. And so it is the 150th birthday of Hermann Kallenbach on 1st of March 2021. And Hermann Kallenbach, as you might know, he has been a German Jewish architect in South Africa, full of sympathy for the Indian cause of emancipation. And he was such a great supporter that he donated his farm to the Indian Satyagrahi family so that they could survive the non-violent resistance, the Satyagraha struggle in South Africa. He was so important in organizing the Epic March, in 1913. He was even preventing a massacre from taking place. Can you imagine that? Yeah. He was really the key of the success. He was one of those Jewish collaborators like Sonia Schlesin and Henry Solomon Leon Pollack and others who were so close with Gandhi and supported some, of course, European supporters, they called them then, but they were instrumental in bringing about a partial success, at least, so that Gandhi could build up his authority, his reputation. Yeah? So this was my short introduction. So why did I choose the word practical idealism? Because Gandhi chose this word for himself. And I asked myself, where did he speak about him as a practical idealist? And this was a very remarkable document where he spoke about himself as a practical idealist. It was the 1920 text published in Young India, The Doctrine of the Soul. And at last, I will tell you about Martin Luther King's reference on the eve of his departure to India to this very text, following the footsteps of Gandhi, Kallenbach, and Tolstoy, and trying to continue this in the United States of America. So this is my program for you, and I hope that you will not be bored by what I have to say. So first, I want to tell you that this is the quote you find frequently when Gandhi says 1920, "I am not a visionary, I claim to be a practical idealist. The religion of nonviolence is not meant merely for the rishis and saints. It is meant for the common people as well. Nonviolence is the law of our species, as violence is the law of the brute. The spirit lies dormant in the brute, and he knows no law but that of physical might. The dignity of man requires obedience to a higher law, to the strength of the spirit." So this is the core quote of Gandhi, where he is claiming to be a practical idealist. Now, this claim has been repeated since then several times. Among all those who claim to be a practical idealist was completely justified, for example, promoters of ecological change, change of ecological policy, like Al Gore, for example. I just want to tell you this term, practical idealist, was used since Gandhi several times, referring explicitly to Gandhi. But it was
created by John Dewey. But who was John Dewey? Who was this American philosopher, psychologist, and educational reformer? He was one of those who had a profound belief in democracy, but he was also a major voice of progressive education. So what is progressive education? You know, it is a stream in educational theory from Friedrich Fröbel, Pestalozzi, Herbart, to Maria Montessori and others. And it is progressive education is a movement which began in the 19th century. It emphasized learning by doing, hands-on projects, experiential learning, emphasis on problem solving, critical thinking, group work, collaborative and cooperative learning projects, education for social responsibility and democracy, lifelong learning, social skills, etc. So why do I mention this? Because it is completely in the line of the educational project, self-educational project, emancipation project of the Tolstoy farm. As I am glad to say that I have been the first biographer together with Dr. Isa Sarit, who was the grandniece of Hermann Kallenbach. I want to give you some flavor of this Tolstoy farm atmosphere now, and that's the reason why I would like to share some thoughts of Kallenbach and Gandhi referring to the Tolstoy farm. And I would like to give you the title of the book in the chat now. This is Hermann Kallenbach, Mahatma Gandhi's Friend in South Africa, by Isa Sarit and Christian Barthold, 1997, you see. And here you see a staunch Tolstoyan. You know, this was the publication of Gandhi, referring to Kallenbach as a staunch Tolstoyan. Yeah? So, and this is the book again. And I want to tell you that you can read this book. It is online. You can read the complete book. So now I give you the address where you can archive and read this book. It is public. And this book is the basis of the literature on Gandhi and Kallenbach. And 2 chapters are missing in this book on Kallenbach's relationship to women, particularly Isabella Fyvie Mayo, a Tolstoy translator in Scotland, in Aberdeen, and also to his relation to the great South African writer Olive Schreiner, Story of an African Farm. These 2 chapters had been excluded because of the Kallenbach descendants family, and this also caused some misunderstanding in Kallenbach's character afterwards. But this was not my mistake, not my fault, because our biography was meant as a concise biography to be followed by a comprehensive biography. But I think the advantage of this first biography is that you find some documents, and I will now refer to this Tolstoy farm documents. And Kallenbach writes, read Tolstoy and tell me what you think of his teachings. Kallenbach and Mohandas Karamchand Gandhi followed the teachings of the Russian Count Leo Tolstoy.
Kaltenbach writes, what Tolstoy wants and what I too am striving for is to recognize the right and to live accordingly without disturbing my fellow beings as far as possible. To give one's opinion, give advice, and to become a world reformer might be the ideal of many, but it is not Tolstoy's. He says, live according to the right once you have recognized it. Each one according to his capacity to realize it. Never disturb your fellow beings. Carry out in practice that which you considered right in theory. Frederick the Great was to have said, each one should seek salvation according to his own fashion. Accordingly, everyone will execute the right as far as his understanding, his courage, his energy, and his circumstances allow him. To realize the right in theory, this is what Tolstoy wants to teach us. And not only from his books, but from his new way of life. Eman wrote these lines to his brother Simon when he was living on Tolstoy Farm. Tolstoy Farm was the joint enterprise of a communal settlement which served as a haven of refuge for the Indian families of those satyagrahis who were thrown into jail for their public civil rights protest. Mr. Kaltenbach has given the name Tolstoy Farm to the farm which he has offered for the use of satyagrahi families, Gandhi writes. He had great faith in Count Tolstoy's teaching and tries to live up to it. He himself wants to live on the farm and follow a simple mode of life. It appears Mr. Kaltenbach will gradually give up his work as architect and live in complete poverty. Mr. Kaltenbach has rendered a valuable service by offering the use of his farm, but more so by deciding to live among our people. He has also agreed to look after the women folk in the absence of Mr. Gandhi. That any white should be moved by such a spirit must be attributed to the power of satyagraha. So I will not now mention the letter correspondence of Kaltenbach and Gandhi with Tolstoy, which was authorizing their Tolstoy farm by the Russian Count, who encouraged them, who saw them as the heirs of his legacy, in his campaign for non-violent non-cooperation, in his support for resistors during the last 20 years of his life. I will also not mention now the reference to A.D. Gordon, a Tolstoy-inspired farmer who was one of the pioneer settlers in Degania, Palestine. No, it's not necessary. Although Kaltenbach was buried at the particular spot where A.D. Gordon, Aaron David Gordon lived, in Degania at the Sea of Galilee, a beautiful place. It's now an operating living museum, by the way, of the first Palestine pioneers who were Tolstoyans. Can you imagine? Yeah, it is the place of Kaltenbach's grave. But now, how did this Tolstoy farm look like, this practical experiment? The farm measures about 1,100 acres, being 2 miles in length and 3/4 of a mile in breadth. It is situated near Lawley Station, 22 miles from Johannesburg. It takes 20 minutes to walk down from the station to the farm. By rail, it generally takes about 1.5 hours to reach it from here. The soil appears to be fertile. The farm has about 1,000 fruit-bearing trees growing on it. There are peaches, apricots, figs, almonds, walnuts, etc. In addition, there are eucalyptus and wattle trees. The farm has 2 wells and a small spring. The landscape is beautiful. At the head there is a hill with some more or less level land on the foot. This is a very important venture. Its roots go deep. It is up to the satyagrahis who settle there to make it bear sweet fruit by the way they live. Amazing, huh?
And it is a dream come true, because already as a schoolboy, Kallenbach wrote, he loved God's free nature. But only now circumstances allowed him to realize this love of nature by purchasing a farm. The presence of the Indians on the farm is of mutual advantage. And 2 years later, Kallenbach identified himself completely with the Indian struggle for emancipation. He placed his mansion at Mountain View at Johannesburg at the disposal of the Indian families, while at the same time he organized meetings for them in the city center, while he worked on Tolstoy Farm. And he writes about his work, "We are having a very busy time with our farm work. The pruning of the fruit trees, cultivating the soil and manuring of a large vegetable garden, and planting of new fruit trees. I have had erected a new windmill which is pumping about 900 gallons of water per hour into the reservoir, 130 feet high. From the reservoir, I have laid pipes to 3 different buildings and also to the vegetable garden. The day could have double as many hours, and I would still be as busy as ever." And in a place nearby, Potchefstroom, Kallenbach had studied governmental model gardens, and his experience was the basis for the agricultural planning. For there were no servants on the farm, and all the work, from cooking down to scavenging, was done by the inmates. There were many fruit trees to be looked after, and enough gardening to be done as well. Mr. Kallenbach was fond of gardening and had gained some experience of this work in one of the governmental model gardens. It was obligatory on all, young and old, who were not engaged in the kitchen, to give some time to gardening. The children had the lion's share of this work, which included digging pits, felling timber and lifting loads. This gave them ample exercise. They took delight in the work, and so they did not generally need any other exercise or games. And Kallenbach learned sandal making from the German Trappist monks in Marian Hill. And after completing the course, he taught this art to Gandhi and others at Tolstoy Farm. Carpentry, planting of fruit trees, gardening, open air work and learning by doing contributed greatly to the health of all the inmates. And they reduced their expenses in order to be able to continue the Satyagraha campaign. Voluntary simplicity, village life, basic education through vocational training, craftsmanship and agricultural work, ethics of renunciation, vegetarianism, chastity, non-violent resistance, and non-cooperation with evil. These were the principles which Tolstoy had advocated. Now I'll leave this and just tell you that this later reference of Gandhi to be his claim to be a practical idealist is in a very remarkable text, because this text caused a lot of confusion and is also caused, I'm ashamed to say, by social scientists, because they only quoted a part of this text, the doctrine of the sword, but not the complete and not the essential passages. You know, this was after the Jallianwala Bagh Amritsar massacre of General Dyer. And this, as you know, it was a shocking, traumatic experience. It also shook it was destroying the authority of the British completely. And it was the beginning of the end of the British rule in India. And
So there were such a hate against the British then among so many Indians that they wanted to kill that Dyer. You understand? And now Gandhi had to bring the strive for resistance to a constructive, strong, non-violent resistance campaign, path of liberation. This was the real reason why he wrote this text, The Doctrine of the Sword. And the first passage has been quoted thousands of times, with all the distortions by politicians who just quoted half of it, and said that even Gandhi is preferring violence to cowardice. And that was the legitimation for them, politicians and whoever, ideologists, to plea for violent intervention. But exactly this was not the intention of Gandhi. No. It was a plea for non-violent non-cooperation, following Tolstoy, following the program of Tolstoy. And Tolstoy was not the one who invented. You can see this tradition long ago, way back, not just referring to Henry David Thoreau's civil disobedience against the expansion of slavery and the war against Mexico. No, as war tax resistance. No, not that. But also way long before Etienne de la Boétie, a friend of the French philosopher Montaigne, about the fall of the tyrant by non-violent non-cooperation. And way back to Lao Tzu, actually, to the Chinese sage. And now you can see that in the end of this text, you can say this is important. Read the end of the Doctrine of the Sword. There you find Gandhi's concept. I want India to practice non-violence, being conscious of her strength and power. No training in arms is required for realization of her strength. We seem to need it because we seem to think that we are but a lump of flesh. I want India to recognize that she has a soul that cannot perish, and that can rise triumphant above every physical weakness and defy the physical combination of her whole world. And then he refers to the meaning of Rama, and this is amazing. This is also in contrast to the mixture, the combination of violent and non-violent means in the Irish Home Rule movement, in Sinn Féinism. He's explicitly referring to this. But his service of India through the religion of non-violence, he said that the religion of non-violence is rooted, the root is the root of Hinduism. And he interpreted his Hindu religion from this ethical religion of non-violence. This is the message of the doctrine of the sword. And he says very clearly that he will never believe in physical capacity as the source of strength, but in an indomitable will. And this is the reason why he claimed to be
a practical idealist, and Satyagraha and its offshoots, non-cooperation and civil resistance, are nothing but new names for the law of suffering, self-sacrifice. And this is the message: not sacrificing any living being, any human being or any animal, but rather, I would say, submit, but with an indomitable will. And this was then a wonderful speech elaborated by Dr. Martin Luther King in his address at the 36th annual dinner of the War Resistance League in February 1959, when he referred to this doctrine of the sword, and he made his 5 points of non-violent resistance. It's a wonderful text. I would recommend you to read, and I will just end my speech with giving you the reference to this wonderful speech, that you might read it yourself, because it's also online. And this wonderful speech, is also containing the core passage of Dr. King's principle of nonviolent resistance, which he started to describe in his Stride Towards Freedom, the first autobiography. But even later on, he repeated again and again the 5 advantages of nonviolent resistance to violence. And now I give you the source of this in a chat, and I thank you for your attention and hope that this conference will be an all-out success. Thank you very much, very handsomely about practical idealism used by John Levy in 1917, and it was subsequently adopted by Mahatma Gandhi in Gandhi Mark in 2002 publications that we can found it. Then it also describes a philosophy that holds it to be an ethical imperative to implement ideals of virtue or good. It further holds to be equally immoral to either refuse to make compromises necessarily to realize high ideals, or to discard ideals in the name of expediency. And practical idealism you very much mentioned in the broadest sense, and we can also compare with the utilitarianism, its emphasis on outcomes and to political economy or several things. But you also mentioned that Jallianwala massacre, that was the beginning of the end of the British rule in India. Then you also mentioned the strong non-violent campaign after Jallianwala massacre and civil disobedience, doctrine of soul. And I thank you very much for the wonderful presentation. So if anybody is having any observation or any question, so people can ask, and please be brief with your observations or questions. So the floor is open for the interactive session. Anyone? If anyone has any question or observation, please unmute yourself and you can ask. I have a question. Okay. This was a really fascinating and stimulating talk. Thank you so much, Dr. Barkov. I'm wondering about how Herman Kallenbach learned about Gandhi. Was this, how did he get connected with him? Yeah. Yes. Thank you for asking this. Of course, he was introduced by
Mr. Khan. This is the official version. You can read about this in the autobiography, and of course, all the scholars who are studying details of Kallenbach's life now ask themselves, what was the real story, or was it maybe the scene of a discrimination when Gandhi was, because of the segregationist policy of the British and Boers in South Africa, when Kallenbach was witnessing a discrimination of Gandhi on the street, or was it, this is very interesting and most plausible, I would say, they met at the Theosophical Society. This was the place of free speech, you know, not just as in London, also the Vegetarian Society. It was always the place in Russia and in England of free thinkers, of people who wanted to reform society, and but the Theosophical Society, with reference to Buddha, and Buddha was the first topic. This is quite clear. So the first topic they were speaking about, Kallenbach and Gandhi, Buddha, renunciation, simplicity in life, no more luxury, because Kallenbach was successful. He indulged in his success somehow. He loved luxury, and Gandhi became a teacher somehow. You know, the upper house, lower house relationship. That means he was always teaching. Gandhi was always teaching Kallenbach to give up his luxury and to share. Of course, he appealed to him to share, and there was such a deep friendship that Gandhi missed Kallenbach's presence when he was in Champaran in India. Why? Because Kallenbach, during the war, was interned as a prisoner of war on the Isle of Man, an enemy alien, because he was German citizen. I want to tell you, maybe I want to take the chance to add the most important contribution of Kallenbach. I mentioned it already in my talk, but I would like to read this small passage. It's just a small passage, and it shows you what practical idealism means as an alternative to violent intervention. Yeah, a non-violent intervention. This might interest you. Yeah, in future, in our, let me say, World Federation society, we need to cultivate these forms of non-violent intervention. And Kallenbach gave the role model example. It was during the Epic March, and the white settlers planned to massacre the Indian Satyari. All these thousands of people who were crossing the border, Transvaal, Natal, they were about to be shot by these white settlers. And in this meeting, when these settlers, these Europeans, met in Volksrast and threatened the Indians with violent shooting, it was Hermann Kallenbach who was inside this meeting. You know, he was part of this meeting, and he converted their minds. Mr. Kallenbach attended this meeting to reason with the Europeans, who were, however, not prepared to listen to him. Indeed, some of them even stood up to assault him. Mr. Kallenbach is an athlete, having received physical training at the hands of Sando, interesting guy, by the way, and it was not easy to frighten him. One European challenged him to a duel. Mr. Kallenbach replied, "As I have accepted the religion of peace, I may not accept the challenge. Let him who will come and do his worst with me. But I will continue to claim a hearing at this meeting. You have publicly invited all Europeans to attend, and I'm here to inform you that not all Europeans are ready as you are to lay violent hands upon innocent men. There is one European
who would like to inform you that the charges you level at the Indians are farce. The Indians do not want what you imagine them to do. The Indians are not out to challenge your possession as rulers. They do not wish to fight with you or to fill the country. They only seek justice, pure and simple. They propose to enter the Transvaal not with a view to settling there, but only as an effective demonstration against the unjust tax which is levied on them. They are brave men. They will not injure you in person or in property. They will not fight with you, but enter the Transvaal they will, even in the face of your gunfire. They are not the men to beat a retreat from fear of your bullets or your spears. They propose to melt, and I know they will melt, your hearts by self-suffering. This is all I have to say. I have had my say, and I believe that I have thus rendered you a service. Beware and save yourselves from perpetrating a wrong. With these words, Mr. Kallenbach resumed his seat. The audience was rather abashed. The pugilist who had invited Mr. Kallenbach to single combat became his friend. Amazing. Huh? This is beautiful. This is the reason why I wrote this biography, you know. This is the key passage. And also Kallenbach's letter to his sister, which was a precise description of the organization of this epic march. So Kallenbach shall be honored worldwide on the 1st of March, 2021, 150 years after his birth. Where he was born, maybe just to mention, Kallenbach was born in what was then called East Prussia, you know, the now Lithuania. So there was recently, and I contributed to this by a lecture in the Jewish library in Vilnius, there was erected a monument on his birthplace, Rusnia. So this is the official birthplace of Hermann Kallenbach, Rusnia. And there is now a Gandhi Kallenbach monument. It's the only monument for peace, as far as I know, in Lithuania. It's at the border to the Soviet exclave, you know, where you find nuclear missiles for defense, of course. You see, this is very, very relevant for today, what we are speaking about. It's not just linked to one place like Germany or South Africa or Lithuania or India, but it's a message for the world. Another observation from Professor Jitendra Nayan. Sir, he is also the president of this international webinar. Sir, you are welcome. First of all, sir, I have privilege and honor to express my sincere gratitude on behalf of my department, all the participants, and especially the kind of lecture you have delivered. You have underlined the essence of Dharma, and particularly the importance of peace and the strength of peace. That has been underlined so wonderfully that we are highly and sincerely obliged for that. Sir, in the real sense of the term, your expectation from this land of peace. Sometimes I have an observation that India has capacity to produce Gandhi because we have a tradition that is based on our Vedanta, Vasudhaiva Kutumbakam. And the inner feeling has been underlined on the issue of non-violence. Actually, sir, Sarva Dharma Sambhav. That is the basic principle or the essence of the Indian philosophy. Equal respect is another term. Sarva Dharma Sambhav means same feeling about the another reason. That is the essence of the Indian philosophy. And when Vedanta says that we are
of the shape of brothers and sisters, because the Creator is one, and only this sense could prevail and save the country. And the way you have underlined the strength of non-violence, which was practiced by Gandhi, that is wonderful. I don't have sufficient word to express my gratitude for the kind of lecture you have said. Really, we have obliged by you. And thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, sir. So next distinguished distinguished professor for today is Professor Lester Kurtz. First of all, I am highly grateful to him to accept my very short time. And there is also one message that his wife, Professor Dr. Mariam Kurtz, was also going to speak, but due to she is not well today, so she is unable to deliver her lecture today. So next time, so we are going to hear her. But now, let me mention something about Professor Lester Kurtz. He is Professor of Public Sociology at George Mason University, and currently he is teaching in the campus in South Korea. He teaches courses on violence and non-violence, peace and conflict, social movements, comparative sociology of religion, and global social thought. He holds a master's in religion from the university and a PhD in sociology from the University of Chicago, and was previously director of religious studies in the University of Texas, Austin. He is the editor-in-chief of 3-volume encyclopedia of violence, peace, and conflict by Elsevier, 2008, and 4-volume third edition is now in progress. And luckily, I am also going to contribute in this encyclopedia 3-4 chapters very soon. So he is also he has written the Warrior and the Pacifist, combating themes in Buddhism, Judaism, Christianity, and Islam by Routledge in 2018. He is co-editor with Mariam Kurtz of the 2-volume Women, War and Violence, Typography, Resistance and Hope in 2015, and with Lee Smithy, The Paradox of Repression and Non-Violent Movements by Syracuse University Press 2018, a Non-Violent Civil Resistance. So these are the few mentions. I have a long list of his publications with me. So today he is going to speak on decolonization of social thought, searching for the truth, decolonization of our social thought. So he has also been the chair of Peace and Justice Studies Association, as well as the Peace, War and Social Conflict section of the American Sociological Association, which awarded him its Robin Williams Distinguished Career Award in 2005. And in 2014, he was given the Lester Ward Distinguished Contribution to the Applied and Clinical Sociology Award by Association for Applied and Clinical Sociology. He has lectured in Europe, Asia, Africa, North America, and taught as a visiting professor at the European Peace University, University of Chicago, Northwestern University, Delhi University in India, Shanghai University in Taiwan. He is a distinguished research fellow at the Institute of Nanjing Massacre History and International Peace in Nanjing, Republic of China. He is having a very distinguished career, and he is a very renowned professor in the peace and conflict and violence studies. So I welcome you, sir, for your lecture on the topic titled "Searching for Truth: Decolonization of Our Social Thought." You are welcome, sir. Please unmute yourself. Okay, there we are. Hi. This is such a wonderful opportunity. Thank you so much, and for that kind introduction, and for the opportunity to speak with you today. I've learned so much from my Indian friends and colleagues, and deep gratitude. I spent a year in India in 1990. I'm dating myself here. In fact, I last year was celebrating 30 years of
being immersed in Gandhian legacy when I was, and so what I wanted to do, one of the things that has really become significant to me is the way in which Gandhi tried to bring together the sort of deep social thought and wisdom of non-Western traditions, together with those from Western thought, and this is, I think, something that's so crucial for our time, and one of the reasons why Gandhi is so incredibly relevant to what we need to do. Excuse me, in the next few decades. And so what I would like to do is to sort of link one of the projects that I'm involved in, which is really inspired by my being immersed in Gandhi's thought, and some of the ideas. I'll get to some of the ideas that Gandhi talked about to sort of contribute to this process of creating some sort of dialogue between Western and non-Western, between northern and southern parts of the globe. So now let me try to share my screen. Can you see my slide now? Oops, not at the beginning here. Let me know if you cannot see can everybody see my slides? Oh, it's not sharing, is it? Not yet. Sorry to say. Okay, Maybe. Let me try again and see. Okay. Oh, I see. Okay. So I have to select. Yes. Okay. Yes. Now you can see my slides. Yes. Okay. Yeah. Okay. So let me do that. And I can't I don't see this. Can you see me or just? Yes, it's fine. Okay, wonderful. So of course, the grand achievement that Gandhi is most famous for around the world is his fight for independence of India from British colonialism, and in fact, this was with independence. I'm reminded of the father of Tanzania, which is my country-in-law. My wife is from Tanzania, and Julius Nyerere said that they achieved only flag independence. So the British gave them their flag. Okay, go ahead, have your flag, have your political system, have your parliament, have your prime ministers and presidents. But we're going to keep control over economic forces. We're going to keep control over much of what happens in the world, and you're not really going to be independent. So part of what I've been trying to do in recent years is to, as an educator and as a social theorist, who wants not just
actually began this project of global social thought or non-Western social thought at a workshop against racism sponsored by the Quakers, the American Friends Service Committee. And it was at this workshop that I volunteered to be an ally and was asked to spend a year reading non-white authors. Well, I kind of compromised that, creating this non-Western social theory course, and now I'm getting also my Tanzanian wife involved in this process of trying to build a network of beginning to think about how we might enhance this. Of course, many people are already working on this, and I think there are a lot of folks in India who've already begun to create this dialogue. So I'm looking forward to ideas and connections of people who are already working on this that I can learn from. But before this workshop against racism, it was the year of doing research in India on Gandhi's legacies that really inspired my thinking, really transformed my thinking, and changed the course of my intellectual career. And so part of what I come from the University of Chicago, where I got my PhD, and there's this wonderful tradition there. It's called the Great Books of the Western World, and it's about I think it's 54-volume set of books that tries to sort of, it's kind of a canon of Western thought. And it seems to me like what we need now is to begin building on these other incredible streams of wisdom and social thought from around the world: Asian social thought, African social thought, Islamic thought, indigenous American and other indigenous communities, so that we can be. Sorry? So that we can begin rethinking some of our theoretical bases. So I begin actually with one of my kind of concluding assumptions from working on this for quite a while. There's in Greek drama, there's a notion of the tragic flaw, and the tragic flaw in Greek drama is a virtue that's carried to an extreme. It seems to me the tragic flaw of Western civilization is this kind of separation of subject and object, sort of reductionism, and an effort to distance oneself from the other. Immanuel Kant, the father of the Enlightenment, also a blatant racist, but an incredible thinker who's contributed so much to how we can sort of delve into some of the aspects of reality that we had not thought of before him. But Kant says we need to force nature to answer our questions, and like a judge compelling a witness. Well, this is the approach that leads to the experimental method, and of course, grand technology of the modern world. So we're all fortunate to live in a world that's been blessed by this technology that's a result of kind of the application of experimental science. The Enlightenment, however, also created this sort of division between the self and the other, and the subject and the object, the collective versus the individual, the colonizer versus the colonized, humanity versus nature, which led to exploitation of the environment in the current climate crisis. This was the creative energy of modern civilization, and it created all of these technological benefits, but it also produced racism, human rights violations, and of course the climate crisis. Kant also, I would encourage you to take a look, if you have access to it, to this wonderful little book edited by Emmanuel Chukwueze, who quotes an essay by Kant, who he takes an excerpt from the essay as the title of the chapter, in which Kant lays out
the ways in which there are different kinds of races who have different kinds of characteristics, and of course, at the top, the most developed are the white inhabitants of Europe. And he comments about in one anecdote, this fellow was quite black, a clear proof that what he said was stupid. So this incredible release of energy from the scientific method, experimental method, and this separation of self and other has created a global system as a really a failed paradigm. So we have human misery and equality on a global scale, malnutrition on a really scandalous level. Every other year, as many children die of malnutrition and related causes around the world as the Nazis killed in the entire Holocaust. The climate crisis is the second sort of indicator that I use. We are actually creating the extinction of a large number of species on the planet, and moving toward a kind of disastrous possibility of destroying much life on the planet. So how did we get here? Well, we have the scientific industrial revolution, experimental science with this sort of reductionism, atomization, and othering. And then, of course, the colonialism with its racism, centralization of wealth and resource extraction. Of course, the industrial revolution in Europe was subsidized by the colonies, right? By India, African nations, colonies, and so on. Then we have the post-World War II global economy. I don't have time to get into all of this. Also, this incredible concentration of wealth. There's a group of Swiss researchers who've looked at, they've done a remarkable study on the ownership, the control of transnational corporations over other transnational corporations. And they found out of all the transnational corporations, there are only 737 of them that accumulate 80% of control. So there's an unbelievable, unsustainable concentration of wealth and resources around the world. And of course, it enhances white privilege. So the world's 1% or whatever percent you want to take are racialized, they're gendered, of course, so we have white males controlling the world. So in order to create a kind of global peaceful culture, the kind of world that Gandhi envisioned, we need to decolonize our knowledge. So I've created this course. In fact, I'm teaching it in Korea this semester, kind of thinking about great books of non-Western thought and how we can sort of recover the brilliance and wisdom of other streams of thought around the planet. I start with Gandhi because I think he's kind of a bridge. And then we moved, after looking at sort of these various streams, look at various substantive issues from the point of view of non-Western scholars. So Gandhi's a bridge. Let me give you one quick example. Thomas Hobbes, who is really, in many ways, the founder of modern social sciences, the English scholar, philosopher, Thomas Hobbes. And one of the things that I found is that if you compare sort of major ideas of Hobbes and Gandhi, they're really quite opposites. And so the kinds of sort of views of human nature, the sort of fundamental ideas about how you understand human nature, how you analyze them and understand and explain human behavior, are quite different from what Gandhi suggested. So Gandhi bridges East and West. He bridges North and South. He bridges the traditional and the modern. He bridges the spiritual and the political. And
one thing I'll talk a little bit about at the end, if I have time. I've lost track of my time. Is the warrior and the pacifist, because he takes these two contradictory themes about that come from all the world's religious and ethical traditions about the use of violence, the warrior and the pacifist, and combines them with the nonviolent activist, the satyagrahi. So Gandhi had this vision of a new social order that he borrowed or constructed, actually, from the Gita, from the Sermon on the Mount, from the Quran, from all of these sort of streams of thought. And the concept of Swaraj, the ethic of service, and this sort of fundamental notion of nonviolent civil resistance, which really has two sides or two hands to it. On the one hand, this incredible, courageous non-cooperation with the order that you're resisting, on the one hand. On the other hand, the kind of constructive work that Professor Dept.of was talking about with Tolstoy Farm, of building the kind of world simultaneously that you're trying to have replace the one that's in its state. Well, I'm not going to take time to go into these others, but I find this, some of these really deep ideas, like the Asian notion that comes out of Lao Tzu, who's over my shoulder here, of yin and yang, that sort of, this is the way the cosmos is organized, of African social thought, of ideas of Ubuntu, and Islamic social thought, indigenous American thought. One of my favorites is the law of the breath. We take in, we breathe, but then we have to give out. And part of our problem now is that we're violating that law. Some Native American spokespeople are pointing that out to us in a kind of prophetic way. So what Gandhi was doing, I think, was really drawing upon and revitalizing this sort of indigenous knowledge that we need to draw upon ourselves. So here's my example of how he did this, sort of theoretically. On the one hand, we have the warrior who believes they have some kind of divine obligation to fight, right? Fight against injustice, stand up and defend the innocent, and so on. The pacifist, on the other hand, believes they also have a sacred duty not to harm, not to kill, which comes out of the notion of ahimsa that Gandhi takes from his own spiritual roots. And then what Gandhi does, he takes these apparently contradictory motifs, puts them together with the nonviolent activist, the satyagrahi, who fights like the warrior but avoids harming like the pacifist. So Gandhi creates this incredible energy, intellectual energy, cultural energy, political and spiritual energy. Johan Galtung, the Norwegian sociologist, who is kind of a father of peace studies as it's developed as a discipline, says that Gandhi is the conflict what Einstein and Newton are to physics. And so he gave us this really remarkable new way of thinking about conflict. So there's this kind of long arc of history. One of my favorite photographs from a conference we had at the University of Texas many years ago. And you see here Dr. King, Martin Luther King Jr., in his office with Gandhi looking over his shoulder right on the wall.
And the people who are holding this portrait are Arun Gandhi on the left, one of Mahatma Gandhi's grandsons, and Bernice King on the right, one of Dr. King's daughters. And so we see this kind of long, I like to think of karmic chains, right? Every thought, word, and deed has consequences, and they grow. These consequences grow exponentially, and we can see from Gandhi's experiments, from the Tolstoy farm and the Satyagraha campaigns in South Africa, through the independence movement, and so on. We can see how these moved forward and expanded around the world. So his experiments in building the new world, this wonderful this sort of rich notion about the Tolstoy farm, where Gandhi, that Dr. Barkov brought to us, where Gandhi brings together people across the divides of his society. Interfaith, it goes across caste and class lines, racial lines, and so on. David Dellinger created, who was inspired by Gandhi's ashrams, created what he called the Harlem Ashram. A young seminary student, George Hauser, was living there, was inspired by Gandhi, later created a Gandhi study group at the University of Chicago, where they engaged in Gandhian style desegregation experiments in the 1940s. And he went on to teach Dr. King and the Montgomery Improvement Society in Montgomery, Alabama, how to sort of actualize Gandhi and apply Gandhi's ideas and strategies to the American civil rights movement. So let me conclude here, because I know I've been going on quite a while with these. I think there's sort of three steps that Gandhi gives us to apply his ideas. We have to listen, we have to analyze, and we have to mobilize. So first, we have this deep listening. We need to listen to people who are suffering around the world and gather the data. And we can use social science. We can use humanities. We have to listen to the voiceless, unpack the cultural frames, and so on. So we have to analyze, then finally analyze those. And I find Johan Galtung's idea of different kinds of violence very helpful for understanding Gandhi. Galtung was also very much influenced by Gandhi's frameworks for thinking of things. We have direct violence, which is what we often think of as violence, but also structural and cultural violence, the way society is structured that harms people, the sort of cultural themes that harm people. And then finally, I've added a fourth to Galtung's triangle: eco-violence, violence against the environment. But finally, then we mobilize. We listen, we analyze, we mobilize, and we have some wonderful empirical evidence from Maria Stefan and Erica Chenoweth of how nonviolent movements for social change had been so remarkably successful at bringing about major national campaigns of change around the world. And so I will leave it there and open it up to questions and comments, because I think I've gone on far too long. Thank you very much, Professor Westergaard, for the wonderful presentation. I congratulate you for such a wonderful insight. Since we have observed in the Communist Manifesto of 1848, Marx once wrote that our political, legal, and educational system were built on the foundation of existing structure which have supported our society. And our colonial past is no exception to such influence. Scholars like Edward Said are now becoming featured on many social theory syllabus, providing a student with a racialized post-colonial perspective on the complexities of modern Western society. Yes, but somehow I must disagree. Despite the inclusion of non-white thinkers
and compulsory modules of issues pertaining to ethnic minority experiences, and the road to complete the decolonization of the discipline is only beginning to be traversed. We need to re-situate discourses on contemporary social issues outside the Western sphere, analyzing non-Western society. That since we are talking of the decolonization of the social thought, and I think you are very much aware about the contribution of Ibn Khaldun. So this kind of Western vices were there, that this kind of the philosophers were not included, and Asian thoughts and African thoughts and indigenous American thoughts in your wonderful presentations. And thinkers such as Foucault and Marx have never been self-identified as sociologists. I am talking apart from the sociology discipline or the social thought, but their theories have contributed so much to the sociological thought. The Confucius political philosophies of government and social harmony, as an example, could help to potentially resituate our social thinking outside the Western context. But you very handsomely mentioned about various crises like climate crisis, spectral violence, and unsustainable wealth and resources, racial economic system. And you also found Gandhi as a bridge between East and West, North and South, traditional and modern, political and spiritual. And you also very handsomely compared between Hobbes and Gandhi, and where Hobbes is mentioning this tyranny is necessary for good of the people. But on the other hand, that when we are talking of the Gandhian idea, that Gandhi is always talking of that you mentioned listening, analyzing, and mobilizing. And it was such a wonderful presentation that I heard today. So I'm highly grateful to you for giving us time, energy, and my best wishes to you and your family. Thank you very much. And if any people, any from the audience or the people who have joined us online, they are having any question, observation, so they are having their time to have some deliberation on it. So you people are highly welcome, but please be brief and concise observation and question. Sir, I will give brief observation that if you allow me. Yes. If you allow me, I have a very short observation. Sir. Sir, we are highly obliged to the kind of lecture you have delivered, taking cognizance of the social theories and basically about the social new order. And you are right in your observation that the social order today, taking cognizance of the many models, social order based on discrimination and exploitation, hate, and ultimately just violence. And you have thought in terms of this. In fact, Gandhi is a representative of the medium path, Madhyamar, that is the middle path. Khan Sahib has rightly pointed out about Marx, the conclusion of Marx-making society, the humanitarian society. And that is the basic difference between Marx and Gandhi and the Indian philosophy. That it does not believe in extreme, it believes in cooperation. Therefore, there is a difference. And you have rightly pointed out, and as a Indian, I have every respect for you, the kind of time you have spent and the insight you have developed living in India, experiencing many thoughts and philosophies. And this is the crux of the problem today, and it will remain well in the future until or unless we are not going to follow the medium path. We have adopted a very extreme path. Marx has also adopted the extreme path. But he was right in our discussion, he was correct while he was talking about the poor. Today that is the problem. And Gandhi has a way, and you rightly pointed out, after conflict you cannot resolve the problem. And in that case, the victim has always remained the poorest. So there should have been a model of cooperation about which Gandhi has taught. And nature has enough to meet the need of the people, not the greed of the people. On the kind of civilization, we are following the kind of philosophy, different philosophy about which you are talking. Some of them are based on that struggle for existence and survival of the people. Gandhi does not believe in it. We should live together. We should think together.
about the entire universe. So, sir, you have a very wonderful presentation, and as a faculty member of the political science, sir, you have spared your valuable time, and Khan Sahib has coordinated that. I have every sense of respect and regard for for people like you. You have spared time. As an Indian also, on behalf of India, I have to express my gratitude for the kind of presentation you have given and the way you have underlined the birth of the Indian philosophy in the light of the Gandhism. Thank you very much, sir. So nice. So anybody is having any question or observation? If not, then I request chair of today's session, Professor Rajiv sir, to give his appreciation remarks on the presentations. Thank you. Thank you, Dr. Aslam. We are, I think, in the first session, technical session of the two-day conference on relevance of Gandhism in the contemporary era, organized by the University Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga, Department of Political Science. First of all, I pay my respect to the Honorable Vice Chancellor, Professor S.P. Singh sir, who was present in the inaugural session. President Organizing Committee, Professor Jitendra Narayan, Professor Mukul Bihari Verma ji, Professor Muneshwar Yadav ji, who is Organizing Secretary, and Joint Secretary and Treasurer, Dr. Ghanshyam Roy. We listened to two amazing lectures in this session from Professor Christian Bartol, President, Ghanaian Information Center, Berlin, Germany. And second lecture was from Esther Kurtz, George Mason University, Korea. When we started this session, we were greeting ourselves. Welcome from India, and Professor Lester reciprocated us a welcome from Korea. So both the lectures were very amazing. Professor Christian Bartol basically covered Tolstoy, impact of Tolstoy on Gandhian thought and the life of Tolstoy, where the basic roots of philosophy were inculcated in Gandhian personality. He also mentioned, especially in his lecture, 1920s text, where Gandhi wrote in Young India, Rocket of his own. And he started his lecture mentioning and highlighting the Gandhian claim of practical idealism. And in the last, he also suggested that we should more elaborate this aspect of practical idealism in present context. He minutely covered Tolstoy forms life, like carpentry, learning by doing, satyagraha, simple life, craftsmanship, non-violence, resistance, which later Gandhi advocated in his life. And very importantly, he mentioned at a place that he never surrendered, fight or incompatible with, was the motto of Gandhi. And he also put some literary works
at many places in his lecture, non-violent interaction, assuming a question. He especially mentioned is Gandhi's relationship with the Karl. He recognized him as a soulmate of Gandhi, who was German Jewish architect. And similarly, the second amazing lecture delivered by Professor Lester Kurtz. He interestingly, because our conference is Gandhian present relevance of Gandhi philosophy. So he started from global social thought. He covered so many global social philosophers from across the world. And he highlighted dialogue, collaboration, building bridges against racism. And he importantly put Gandhi, the capacity of his personality is to bridge the gap between East and West, North and South, and onwards. He saw Gandhi as a visionary and capable to give solutions to new social order. And Gandhi also revitalized indigenous knowledge, he mentioned. He especially puts Gandhian steps, 3 steps: listen, analyze, mobilize. And very importantly, in the last, he put Gandhi's relevance in social epidemiology. In the middle of the lecture, he put some data which was highlighting that 80% control over the value of transnational corporations in the present world. I would like to add some few points with these 2 amazing lectures, that we are living in a world where only 25% nations are controlling 75% of our resources. And I was reading Oxfam report recently, it was published on 31st January 2021, where Oxfam report exposed that during COVID lockdown, Indian billionaires' income was increased 36%. And he also mentioned in this, the Oxfam institution also mentioned in its report that there are 24 to 30% people in India who earn 3,000 rupees per month. As far as Gandhi's presence, relevance of contemporary era is concerned, what is contemporary era? The contemporary era is that we are living in a very unequal world, and very importantly that we are living in a technological era, highly technological era. Our lives are witnessing very rapid change, and human lives are not built to cope up with such change. We have, 65% of population under 35, and technology make them very, very personalized. We are living in an echo chamber of intent. What we want, we see. What we want, we talk to them. We are very selective. We are very personalized. And gradually, that's why we are not liking any dissent. Because we like to live with like-minded people. Technology is pushing us to such life. And that's why you are witnessing the dissent in the present family and social and political system. If you put any barrier or any dissent with the small children, he or she don't like it. Because technology is pushing us with a very, very preferably
like-minded things. And it is estimated that after 30 years, there will be a very 40-50% population who will be old age population, the present generation, and who will have no societal ramifications or capacity to cope up with social ramifications. So we will have great problems in our society, in family life, in social life, in the near future. You know, we are living in a market economy. The whole system is running on the base of finance and money. And the financial system works only for rich. So we have to think Gandhi's relevance, how we can take out from Gandhi's ideas so that we can make him relevant and make our life capable to cope up with new challenges which we are going to face. So in the last, thank you so much to Christian Bartol and Professor Lester Kurtz that I think it should be morning in Korea, early morning. Yes. And I think thank you so much that you provided time today in this conference. And I also am very thankful to organizing committees and organizing part of the conference that they called us and they provided an opportunity to discuss with you. Thank you so much. I have a question. No, after the special address, no questions. Now I would like to request Professor Mureshwar Yadav to give the vote of thanks. Thank you, Dr. Saab. You took the trouble to travel from Central University to the State University, our university, that left Narayana University. I am really grateful, and I'm here to express my gratitude to the Professor Christian Bartol from Germany. So it is simply because of your address that this international e-conference is going to be successful. From the inner core of my heart, on behalf of the University Department of Political Science and Lalit Narayan University, Darbhanga, Bihar, India, I am really, really grateful to you all. Professor Christian Bartol, I don't have any word to encapsulate your scholarship. So is the case with Professor Lester Kurtz, who has delivered wonderful lecture on the philosophy and theorization of Gandhi. You have rightly pointed out, sir, that yes, there are certain three things that is deep listening, analyzing, and mobilizing the masses. That's the kind of theorization which is required to the policymakers. And they should listen to the people, the masses. They should analyze and then mobilize the resources to address those problems. So for policymakers, this has been the theorization which is going to guide them in policy formulation. I'm extremely sure Dr. Professor Miriam Kurtz is not getting well. She could not pass. I'm really thankful to Professor Rajesh sir, who has taken the trouble, although he's not getting well. And he traveled from the Central University to the State University. And he is there. I'm to express my gratitude to the Lester sir, the senior faculty member of political science. So is the case with the moderator. Our moderator is wonderful. Without his kind permission,
we would not have been able to make the local, global kind of event. So credit goes to Professor Aslam Sahab, and I'm really, really grateful to you, sir. Sir, this session would not have seen the light of the day without a kind of permission of the president of this organizing committee. And President is the head of the Department of Political Science, Professor Jitendra sir. So is the case with the organizing committee, the chief patron, the honorable vice chancellor of this university, who is a visionary vice chancellor, and that's why we took this initiative, and it has been wonderful. For our student, this is for the first time to experience this kind of event, and you should organize this event. Teachers are not going to organize this event. It is the responsibility of the student, and they should organize it. It is in your interest, not in our interest. And not only that, the organizing committee consists of the convener, Professor Mukul Bihari Bhargava, joint secretary and treasurer. Without the financial fair, we cannot run the system, and we are really, really grateful. The wonderful treasurer of this committee. And with City, this is the third one, and somebody has already underlined the technological dependency that is there. We are fully dependent upon technology. And technologically, we are going to create a tribe, and you must be a member in order to feel comfortable with the tribe. And that's why Alice is there. We have the technical support. And so is he's the engineer of this university, and for a few minutes, we are so anxiously waiting for him. He was outside, and we are waiting inside. So it's a case with the wonderful in charge of this hall, that is the only hall. This is the state university, sir. This is not the central university. We don't have resources to have the paucity of fund. We are not like you. So Vivek is there. Vivek is a wonderful chap. So is the case with the prince. So is the case with our third semester students, our research scholars, Rajesh, Avinash, Siddharth, then yes, not only that, this Vijay is there, and all those students who have supported us. I don't remember. Chandan, Shravan, the assistant professor in BRB College. Alok, Devasis happens to be the student of this Sahab. I don't have to say, Sahab, under his supervision, under his guidance. So this is the thing. Anil Babu is there. I don't remember the name. And yes, Sir Banuj Sir Bukna. Gangesh Babu. I was forgetting your name, and I must forget it. Therefore, thank you very much. I'm here from this is you have to continue. Thank you very much. The session is over with the kind permission of the chair. Ganesh, प्रिया बेटा Yes, sir. अच्छा कोई बात नहीं, जो नहीं है उसका क्या कीजिए? बहुत सिंसियरली अपने काम को मॉनिटर करो। बच्चों में सर बहुत 3 बजे रात तक अभी होते हैं सर 10 भाई शासन के साथ नहीं आते तब 10 को Thank you. Now this photo session is over. You can't permission. Thank you very much. Actually, look.
कैंसर एक्शन रिसर्च करो अरे सब एमए वाला सर